Part 19. یہ اچھی بھلی جنگ کا سماں ہے. ملک ہے ہندوستان اور یہ اس کا شہر ہے پانی پت. مگر یہ پانی پت کی چوتھی لڑائی نہیں ہے بلکہ ٹرک ڈرائیورز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہو رہا ہے. امبالے سے چل کر میں یہاں پہنچا تو شہر میں پہلا منظر یہی دیکھا. مگر یہ محض اتفاق تھا ورنہ مار دھاڑ اس شہر کی روایت نہیں. امبالے سے آگے جی ٹی روڈ بظاہر سپاٹ میدانوں سے گزرتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ میدان ایسے ورق ہیں جن پر ہزاروں برس کی تاریخ رقم ہے. یہیں دریائے سرسوتی ہے، یہیں تھانیسر ہے جو میری طرح محمود غزنوی کی راہ میں بھی پڑا تھا، بس فرق یہ ہے کہ میں کچھ توڑے پھوڑے بغیر آگے بڑھ گیا. یہیں پہلے پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کو شکست دی تھی اور یہیں اس شکست کا حساب بے باک ہوا تھا. یہیں راجہ ہرش کا پایا تخت تھا، یہیں برہم سر ہے جس میں گناہ دھلتے ہیں، یہیں کورو اور پانڈو کے درمیان مہابھارت کی جنگ ہوئی تھی، یہیں سفید گنبد کی وہ دلکش عمارت ہے جو شیخ چلی جلال کا مقبرہ کہلاتی ہے، اور یہیں 8 ستونوں پر ایستادہ لال مسجد ہے، فتح پور سیکری جیسی. درختوں کے جھنڈوں کے درمیان دوڑتی ہوئی ہماری بس اچانک بائیں جانب مڑی، ایک سوکھے پڑے ہوئے برساتی دریا کو پار کیا اور کرنال جا پہنچی. میں وہیں اتر گیا. بارونق بازار دیکھے، ایک بہت بڑی مسجد میں سرکاری دفتر دیکھے، بو علی شاہ قلندر کا دوسرا مزار دیکھا. لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پانی پت کے علاوہ وہ یہاں بھی دفن ہیں. پھر کرنال کے نوابوں کی حویلی دیکھی، نہایت شاندار 3 منزلہ عمارت، سر سے پیر تک مسلم طرز تعمیر، در، دریچے، مینار، محرابیں، ستون، جالیاں، برآمدے، راہداریاں، ان سب پر لگ بھگ 40 برس کی کائی چڑھ چکی تھی. محرابوں میں اینٹیں چن کر حویلی کا بٹوارہ کر لیا گیا تھا. نیچے بھینسیں پلی ہوئی تھیں، اوپر لوہے کے تاروں کی الگنیاں بندھی ہوئی تھیں. میں تیزی سے باہر نکل گیا. اسی کرنال کی فصیلوں کے باہر نادر شاہ نے محمد شاہ کے 20,000 ہندوستانی فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا تھا. یہیں سے نادر شاہ دلی گیا تھا، وہی نگر جو 100 مرتبہ لوٹا گیا. تھوڑی دیر بعد پانی پت آ گیا. میں نے بےتاب ہو کر بس کی کھڑکی سے باہر جھانکا. میرا خیال تھا ہر طرف بابر، ابراہیم لودھی، اکبر، ہیمو بقال، احمد شاہ درانی اور ہولکروں، سندھیاؤں اور گائکواڑوں کی یادگاریں نظر آئیں گی، لیکن ہر طرف پچ رنگے اچار کے سائن بورڈ نظر آئے. نیا پانی پت بہت سے پرانے پانی پتوں کے کھنڈروں کے اوپر بنا ہوا تھا. جمنا اور مسلم آبادی دونوں اس شہر کو چھوڑ کر جا چکے تھے. بو علی شاہ قلندر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے مجھے 2 باتوں کا خیال آیا. ایک تو کوئی ایسا پرانا باشندہ مل جائے جو پانی پت کا سارا حال کہہ سنائے، اور دوسرے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جو گرم نان کے ساتھ بہت سا سالن کھلا دے، کیونکہ بھوک اس دوپہر بہت زور کی لگ رہی تھی. میرے میزبان رام لال اروڑا صاحب کہنے لگے، پہلے قلندر صاحب کے مزار پر چلیں گے. اس شہر میں اس سے زیادہ برکت والی کوئی جگہ نہیں. ہم بڑے بازاروں اور ان کے اندر چھوٹے بازاروں اور ان کے اندر تنگ اور پرپیچ بازاروں سے گزرتے ہوئے پرانے دروازوں سے ہوتے ہوئے اس شاہانہ دروازے میں داخل ہوئے جس میں سامنے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی محو آرام تھے اور بائیں جانب خواجہ الطاف حسین حالی پانی پتی محو خواب تھے. درگاہ میں حاضری دینے والے غیر مسلموں کا تانتا بندھا ہوا تھا. ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا، اس درگاہ کے دروازے ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. 9 بیاہتا جوڑے قلندر صاحب کی آشیرواد لینے آ رہے تھے. مریض سہارا دے کر لائے جا رہے تھے. ان سب کے درمیان میں الگ سا نظر آیا اور ابھی پہلے ہی شخص سے میرا تعارف کرایا گیا تھا. یہ سارا عملہ، سارے نگراں، سارے خادم، مجاور اور سجادے نکل آئے. وہ سب بی بی سی سنتے تھے، سب مجھے جانتے تھے. سید اختر حسین سرہندی جو درگاہ کے سجادہ ہیں مجھ سے بولے، خوب آئے آپ، کھانا لگنے ہی والا تھا، پہلے ہاتھ دھو لیجئے اور جو روکھا سوکھا ہے وہ نوش فرمائیے. ذرا ہی دیر بعد دسترخوان پر گرم نان اور بہت سا سالن چن دیا گیا. اس دوپہر رزق پہنچائے جانے کا ایک وعدہ مجھے رہ رہ کے یاد آیا. اب سوال تھا کہ پانی پت کا احوال کس سے سنا جائے. پرانا زمانہ دیکھے ہوئے اردو بولنے والے بزرگ تو اس شہر سے کبھی کے جا چکے تھے، اب یہ گفتگو کون کرے گا؟
اچانک کسی کے ذہن میں ایک نام بجلی بن کر کوندا، لالا رام چرن اگروال۔ اس شہر کو جاننے والا ان سے بہتر اور کوئی شخص نہیں۔ ہم پھر انہی تنگ بازاروں، چھوٹے بازاروں اور بڑے بازاروں سے گزرتے ہوئے لالا رام چرن اگروال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اب جو انہوں نے گفتگو شروع کی تو ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو تھی۔ پس منظر میں فرش دھل رہے تھے، برتن مج رہے تھے، نل سے پانی بھرا جا رہا تھا، سارا کنبہ کام میں مصروف تھا، اور اگروال صاحب نہایت شفقت سے اس صدی کے پانی پت کا احوال کہہ رہے تھے۔ پارٹیشن سے پہلے یہ ہے کہ پانی پت کی آبادی جو تھی کوئی 40-45 ہزار کے قریب تھی، جس میں سے ایک حصے کے قریب ہندو تھے اور 3 حصے کے قریب مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ محنتی اور غریب آدمی تھے، تھوڑے سے مسلمان ذمہ دار تھے۔ جو اچھے بڑھیا مسلمان تھے وہ پڑھ گئے، تعلیم حاصل کی، اور میٹرک تک تو وہ یہی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد میں جا کے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں وہ لوگ باہر چلے گئے۔ اچھا، تو اب آج کا پانی پت جو ہے یہ بیان کیجئے، اس کی کیا نوعیت؟ یہاں پانی پت ہمیشہ سے ایک انڈسٹریل ٹاؤن رہا ہے۔ یہاں 2 انڈسٹری تھی۔ ایک انڈسٹری تھی کمبل کی، ہینڈ ووون ہینڈ سپن کمبل، اور ایک انڈسٹری تھی کانسی کے برتنوں کی۔ جو کمبل اور برتن تمام انڈیا کو کور کرتے تھے، تو وہ تمام کاریگر مسلمان تھے اور وہ بناتے تھے۔ سن 1914 کی وار میں جب کمبلوں کی ضرورت پڑی تو ان کو کمبل بنانے والوں کو کمبلیاں کہا جاتا تھا۔ انہی کمبلیوں نے کمبل بنائے۔ ان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، وہی لالا لوگوں سے پیسہ لیتے تھے، اون خریدتے تھے، خود کتائی کراتے تھے اور کمبل بناتے تھے۔ پھر جب لڑائی 1939 میں جرمن وار شروع ہوئی، تو حال کا ہی واقعہ ہے، اس وقت انہوں نے بہت کمبل بنایا، اور جہاں جہاں بھی ولایتوں میں کمبل کی مانگ ہوئی وہ کمبل انہوں نے بنایا۔ اور ویسے دیسی کمبل ہاتھ کا بنا ہوا بھی تمام انڈیا میں ان کا کمبل چلتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں روزگار لوگوں کو ہمیشہ ملتا تھا۔ لوگ بڑے محنتی جفاکش تھے، اور قناعت تھی انہیں، تھوڑی سی آمدنی کے اندر بڑے خوش رہتے تھے۔ سادہ چلن تھا، سادہ لباس تھا، سادہ کھان پین تھا۔ یہ جو آج کل ہم اتنی باتیں دیکھتے ہیں، یہ باتیں تو تھی نہیں۔ اس کے بعد میں پارٹیشن ہو گیا۔ پارٹیشن ہونے کے بعد میں یہاں سے مہاتما گاندھی جی 3 دفعہ یہاں آئے اور مسلمانوں سے اس بات کی التجا کی کہ تم لوگ یہاں مت جاؤ۔ انہوں نے یہ بات کہا کہ واسطہ اللہ کے ہم کو یہاں سے بھیج دیجیے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد میں راج پلٹی ہوگی، قسم قسم کے لوگ یہاں آئے، ضلعوں ضلعوں کے لوگ آئے۔ جو بنگر لوگ تھے، جو ٹیکسٹائل کے آدمی تھے، ان کو وہی محلے وہی گھر الاٹ کیے گئے جو گھر مسلمان چھوڑ کے گئے تھے، اور انہوں نے نیا زمانہ آ گیا ہے، نئے قسم کے کمبل بنانے شروع کیے، نئے قسم کے کھیسے چادریں بنانی شروع کی۔ یہ لوگ بیپاری لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو تھے مسلمان غریب آدمی تھے، یہیں بناتے تھے، یہیں بیچتے تھے۔ انہوں نے انڈیا کے ہر چپے میں وہ سامان کو پہنچایا، حتیٰ کہ باہر ملکوں کو بھی باہر پر سامان یہ ترقی کی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سن 35 میں یا سن 34 میں صرف یہاں کسی آدمی کے پاس کوئی ٹرک نہیں تھا۔ میری دکان یا بیٹھک جی ٹی روڈ پہ تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ پنجاب سے روئی کی گانٹھوں کے ٹرک بھر کے دلی کی طرف جاتے تھے۔ تو ہم یہ خیال کیا کرتے تھے جس کسی کی بس ٹوٹ جاتی ہوگی وہ چھت اتار کے ٹرک بنا لیتا ہوگا۔ اس کے بعد میں یہاں ایک لالا بشمبر داس تھے، تو انہوں نے ایک ٹرک بنایا۔ اب کیا حالت ہے ٹرکوں کی؟ اب تو جناب یہاں یہ حالت ہے ٹرکوں کی کہ 400-500 ٹرک یہاں پانی پت میں ہیں، اور بھگوان روزی سب کو دے ہی رہا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ پانی پت باہر سے آنے والوں کو بہت راس آتا ہے، اس کا کیا قصہ ہے؟ کچھ ایسا ہے کہ میں تو ولی اولیاؤں کا بڑا معتقد ہوں۔ یہاں 3-4 درگاہیں ایسی ہیں کہ جن کے شرف سے ہم لوگ جو ہے
पार उतर रहे हैं। लाला रामचरण अग्रवाल, ऐसे शफीक, ऐसे इनायत और मोहब्बत करने वाले लोग इसके बाद नहीं रहेंगे। पानीपत के इस छोटे से सफ़र ने मुझे कितना सरशार किया। सच है, कुछ ज़मीनें फैज़ की बरकतों की ज़मीनें हुआ करती हैं। कुछ देर पहले कलंदर साहब की दरगाह में दिल को कैसी राहत मिली थी। इस इमारत के धुंधले नक़ूश बता रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई ये इमारत कभी कितनी दिलकश रही होगी। ये वही इमारत तो है जिसमें कसौटी के पत्थर के 6 सुतून हैं, 4 सालिम और 2 आधे, न कहीं जोड़ न कोई शिगाफ। कसौटी के इतने बड़े पत्थरों से तराशे हुए सुतून पूरे बड़े सगीर में और कहीं नहीं। कहते हैं कि कभी कोई गैर मुल्की जहाज़ डूबा था, जहांगीर के ज़माने में गोताखोरों ने समंदर की तह से उसे निकाला तो उसमें से ये पत्थर निकले। इन 300 बरसों में अनगिनत ख़वातीन ने आते जाते अपने सोने के जेवर आजमा कर देखे होंगे, चुनाचे कसौटी के ये सुतून जितने सियाह हैं उतने ही सुनहरे हैं। पानीपत कैसा शहर और कैसा मकाम रहा होगा कि दूर दूर से बुजुर्ग आकर यहाँ आबाद हुए और फिर यहीं की खाक में सो रहे। और दिलचस्प बात यह है कि इस जर्नेली सड़क के किनारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक औलिया अल्लाह ने कितने बहुत से डेरे डाले होंगे कि आज तक कोई शहर, कोई कस्बा उनकी निशानियों से महरूम नहीं। बिल्कुल यही बात उस रोज़ सैयद अख्तर हुसैन साहब सरहिंदी ने भी कही थी। दिल्ली से आप किसी भी बड़े शहर में जाएं, अमृतसर तक नहीं बल्कि लाहौर बल्कि पेशावर तक जाएं, कोई भी शहर आप देख लें, यहाँ रास्ते में आता है सोनीपत आता है, फिर ये आता है पानीपत आता है, पानीपत के बाद करनाल है, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र है, अम्बाला है, सरहिंद है, खन्ना है, फगवाड़ा है, जलंधर है। कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ पे औलिया अल्लाह के मज़ारात न हों। और यही वजह है कि सड़क की तरफ आपको हर तरफ रौनक ही रौनक नज़र आती है। उन औलिया अल्लाह की तफ़ैल से है ये थे हज़रत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के सज्जादा अख्तर हुसैन साहब। आइए अब ज़रा हरियाणा बल्कि रोहतक की बोली ठोली सुने। मैं वहीं के एक गांव मोगरा खेड़ी के बाशिंदे दीन मोहम्मद से बातें कर रहा था। उस गांव में इस पूरे इलाके की तरह मुसलमानों के अब सिर्फ 2 घराने रह गए हैं। मैंने दीन मोहम्मद से इस इलाके के देहात की ज़िंदगी के बारे में पूछा। इस गुफ्तगू में कुछ बातें ऐसी भी आएंगी जो मुमकिन है कुछ सुनने वालों को नागवार महसूस हों, मगर तवज्जो से सुनिएगा कि मुआशरों पर जब बुरा वक्त पड़ता है या ज़वाल आता है या ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है तो उस ज़िंदगी में लुत्फ़ ढूंढने की सोच कितनी बदल जाती है और उसका क्या हाल होता है। मैंने दीन मोहम्मद से पूछा कि तुम्हारे देहाती इलाके में लोग क्या खाते पीते हैं। खावा पीवा गया देहाती आदमी अपना चटनी रोटी गंठा फोड़ा अपना रोटी खा ली। गांव खेत में चले गए, लस्सी का लोटा हुआ है और ये गंठा फोड़ा और उससे अपना फोड़ का खा ली। बस सारा ये है। यहाँ तो मुसलमान और हिंदू हो, मतलब यहाँ के बासिंदों उनका रिवाज सब कुछ एक है, खाना पीना सब एक है। पहनते क्या है? पारते क्या अपना ये सद्दा है, पाली घाघरी पारते थे, सलवार लग गए पारने। मुसलमान पारते थे सिर्फ सलवार पजामा, और मुसलमान का फैशन पकड़ लिया। घाघर तो गा 21 गज का घाघर 10 में जुआ हो जाए थी। और एक हमारे गांव की बात है, यहाँ ओगरा खेड़ी की एक औरत जो थी मेरे पड़ोस में लौट रही है, 4 पाई के पौए के साथ मुंह बाया पड़ रही। वो कुत्ते ने टांग ठाक उसको मुँह दिया। वो कहने लगी क्या करी? मेरा बाप कहने लगा तेरा रोज का तुम मुंह ढक कर सोया कर। वो कहने लगी जायरो का मुंह में मुँह गया, क्या करूँ? हो गया अब यार ना पानी लेकर कुल्ला कर लग गया। मेरा बाप कहने लगा नहीं, गर्दन कटवा दे, बिल्कुल नापाक हो चुकी तुझे। मेरा अगला सवाल, मेरा आखिरी सवाल बहुत दुश्वार था। दीन मोहम्मद, मैंने पूछा, कैसी ज़िंदगी गुजरती है तुम्हारी अब इन देहात में? लोग तुम्हें परेशान तो नहीं करते? सर फुटअव्वल तो नहीं होती? इस पर दीन मोहम्मद ने अपनी ज़मीनों के छिन जाने का और फिर सर फुटअव्वल और मुकदमेबाजी का किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह अदालत ने दोनों मुस्लिम घरानों की ज़मीनें वापस दिलवा दी और ख़यानत करने वालों को सज़ाएं दी, मगर ज़िंदगी अब भी कुछ इतनी सहल नहीं। वो सारा माजरा सुनाने के बाद दीन मोहम्मद ने जो कुछ कहा, लीजिए आप भी सुनिए। बस हम खुदा की ताकत से हैं। हम अब भी कहते हैं गाँव वाले ने, जैसे हम गाँव के मशवरे जैसे गाँव वाले चलते हैं ऐसे हम चलते हैं।
वो ईमानदारी पर चलेंगे, हम भी ईमानदारी पर चलेंगे, और बेईमानी में चलेंगे, हम भी चलेंगे। हमने साफ कह दिया, लेकिन दबका नहीं रहेंगे। कब तक रहेंगे दबका? पार्ट 20। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसकी सीढ़ियों पर बैठा हुआ मैं अपने ग्रैंड ट्रंक रोड के उस सफ़र को याद कर रहा हूँ जो मुझे इस शहर तक ले आया है। और इसके आगे जो सफ़र है वो तो अल्लाह जाने कैसे होगा, लेकिन आज यहाँ पहुँचकर यूँ महसूस हुआ कि दिल्ली आना गोया इस सफ़र की तकमील है। ऐसे लगा कि मंजिल यही है। और फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, वही सीढ़ियाँ जिन पर चढ़कर शाहजहाँ यहाँ नमाज अदा करने आते होंगे, और वही सीढ़ियाँ जिन पर सरमत की गर्दन काटी गई, और वही सीढ़ियाँ जिन्होंने अल्लाह जाने कैसे कैसे मंजर देखे होंगे, और वही सीढ़ियाँ जिन पर मीर तकी मीर ने बोली ठोली से वो उर्दू ज़बान सीखी, जिस ज़बान की शक्ल में उन्होंने उर्दू को ऐसे ऐसे अशार अता किए कि इस ज़बान की किस्मत जाग गई। उसी जामा मस्जिद की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर जो कैफियत, जो एहसासात, जो जज्बात गुज़र रहे हैं दिल पर, वो दाग के सदमों से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं। अब यहाँ से मैं चलूँगा और जामा मस्जिद की गली कूचों में जाकर लोगों से मिलूँगा, उनकी बातें सुनूँगा, उनकी आवाज़ें सुनूँगा, उनसे ख़ुद भी बातें करूँगा, और फिर देखते हैं कि दिल्ली वाले क्या कहते हैं। दरबार की नुक्तियाँ लो, क्या पैसे में डबल 2 पैसे का माल, एक आने के 50 ग्राम लगा दिए शरबत को, फाल से भैया काले पीले लाल सुरख सवत काशनी आसमानी उदे लगा दिए शरबत को, औरों की जनानी खिरनियाँ यार के मर्दाने फाल से लगा। बकरी का कोरमा मिलेगा, मच्छी मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, अंडा मिलेगा, सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, चपाती, तंदूरी, शीख कबाब। अच्छा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़? और सब चीज़ बतला दूं मैं आपको। बड़े का भुना, बड़े का सादा, बड़े का कीमा, बड़े का कलेजी, बड़े का चाप, बकरे कोरमा, अंडा, मच्छी, मुर्गा, शीख कबाब, शामी कबाब, मटन बिरयानी, जिसमें सब जोरदार सब मिलेगी। वाह वाह जनाब, ये हमारे इलाके के बहुत ही अजीम बुज़ुर्गों में से हैं। हम इनकी बहुत ही कदर करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, समझे। इनका नाम लाला अमरनाथ है। ये जो हैं बहुत ही अच्छे हमारे सुधार कमेटी के ख़जानची भी हैं इस गली के। जो भी कोई दंगे फसाद हो गए मोहल्ले के अंदर तो ये फैसला कराया करते थे। कैसे मिजाज हैं आपके? आप तशरीफ रखिए, कोई जहमत ना कीजिए, आप तशरीफ रखिए, आपके पास हम बैठेंगे यहीं पे। बड़ी गर्मी है आपके शहर में। यहाँ 7 पीढ़ियाँ गुजर गई इस मोहल्ले के अंदर, सारी उम्र हमारी नहीं गुजर गई, हमारे वालिद की, हमारे पिताजी की, सब बातें हमारी नहीं गुजर गई, और सब भाई भाई की तरह से रहते हैं। हिंदू मुसलमान जितने हैं सब हम इनकी इज्जत करते हैं, ये हमारी इज्जत करते हैं। बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर रही है हमारी तो अब तक, और कल की कहते नहीं हजूर, कल क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको इन गलियों में जो आपने अपना बचपन गुजारा था वो ज़माना याद है आपको? क्यों नहीं है। उस वक्त की दिल्ली कैसी थी? इस वक्त तो दिल्ली क्या पूछते, कोई आदमी बाज़ार में इस टाइम पे सोखता हो जाया करता था, और शाम के टाइम में चमार जूतियाँ लेकर के और बेचने जाया करते थे। ये हालत थी इस बाज़ार में। और अब तो जनाब जो जितनी पब्लिक दिन में चलती है इतनी रात को चलती है ना, ये हालत है इस वक्त हिंदुस्तान में। आप तो जामा मस्जिद के बिल्कुल पिछवाड़े रहते हैं। उस ज़माने में जामा मस्जिद में कैसी रौनक हुआ करती थी? जामा मस्जिद के अंदर इतनी रौनक नहीं थी जो अब रौनक है। हमारे बचपन में जहाँ अब 20 सड़क पे जो खंबा लगा है, इस खंबे पे एक गैस का हंडा टंगा रहा करता था जिस ज़माने में,
और एक चिल्ली कबर के ऊपर हंडा और गलियों में लालटेनें बला करती थी मट्टी के तेल की, समझे। और सही शाम अकेला बच्चा रात को 8 बजे जा नहीं सकता था, इतना सोचता मोहल्ले के अंदर रहा करता था। अच्छा ये बताइए कि जामा मस्जिद और उसकी सीढ़ियों पे खाने पीने की चीज़ें, निहारी और हलीम और नान और कबाब, ये सब चीज़ें आपके ज़माने में भी होती थी? जी हाँ, ये ज़माने में, इस ज़माने में बिकती थी, इस ज़माने में बिकती थी। उस वक्त ज़्यादा मज़े की होती थी या अब ज़्यादा चटपटी होती? ये अब ज़्यादा चटपटी हैं, इस ज़माने से अब ज़माना तो पलट गया हजूर। अब ज़्यादा हर चीज़ में अब ज़्यादा लज्जत है, क्यों? आमदनी पैसे की हर इंसान को है। रुपए 2 रुपए तो छोटा बच्चा भी उठा देता। और पहले जनाब हम इतने बड़े थे, एक थैला, बहुत कोई त्यौहार हुआ, बहुत बड़ा पैसा मिल गया, 2 पैसे मिल गया तो बड़े खुश हुआ करते थे। ये बताइए कि आपको वो अपने ज़माने की दिल्ली ज़्यादा अच्छी लगती थी या आज की दिल्ली ज़्यादा अच्छी है? सुकून किस ज़माने में था? सुकून इस ज़माने में था। सुकून की जिंदगानी जो थी इस ज़माने में थी, क्यों? खाने पीने की बहुत मौज थी। पहले जैसा घी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं। पहले ज़माने में हमारे 4 पैसे से दूध, समझे। और 1.5 सेर का हमने घी खाया है बचपन में, 1.5 सेर का, समझे। अब वो घी नहीं, हमने कोई इज्जत नहीं इंसान की। अब तो पैसे की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है। और इस ज़माने में इंसान की इज्जत थी, पैसे की इज्जत नहीं थी, समझे। पहले बड़े बूढ़े की इज्जत करते थे, बिठाया करते थे, उठाया करते थे और इज्जत से। और अब पैसे वाले की इज्जत है, बड़े की इज्जत नहीं है हजूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं BBC लंदन से आया हूँ आपकी बिरयानी देखने के लिए। अच्छा जी। ये बिरयानी आपकी कब से बिक रही है जामा मस्जिद? बिरयानी जामा मस्जिद से 60 बरस से बिक रही है। तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इस बिरयानी को। आप ये बिरयानी क्या किसी ख़ास तरीके से पकाते हैं? ये हम बहुत ख़ास तरीके से पकाते हैं, यानी चावल अलग भिगोते हैं, गोश्त अलग पकाते हैं और उसमें दुनिया के मसाले डालते हैं, दही डालते हैं। ये देखिएगा मेरठ वालों की मशहूर हलीम बिरयानी है ये। आपकी हलीम भी बहुत मशहूर है क्या? जी हाँ, यही बहुत मशहूर है बरसों से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप अपने बच्चों को और लोगों को सिखा रहे हैं ये पकाना? हाँ, ये जो एक को ज़रूर स्टार्ट रखते हैं। मतलब ये है कि जब मेरा बच्चा यहाँ दिल्ली आएगा तो उसको यहाँ ये बिरयानी और हलीम मिलेगी? बेशक, इंशाअल्लाह। अच्छा, शुक्रिया। बिरयानी बुड्ढा भी बहुत ही खुशबूदार फूल हैं, ये आप कहाँ से लाते हैं? ये हम मंडी से लाते हैं। ये खसबों वाले गजरे हैं। और कौन लोग खरीदते हैं? इनको लोग खरीदते हैं जो घर गृहस्थी हैं जी, उनके लिए हम बना करके लाते हैं। और शादी होती हैं उनके सेहरे बनाते हैं और चंपाकली बनाते हैं और अंगूठियाँ बनाते हैं शादियों के लिए। अच्छा ये बताइए कि वो जो किसी ज़माने में मालन हुआ करती थी, जो शादी ब्याह में फूल लाती थी और गजरे लाती थी, और मालन अब भी होती है क्या? नहीं जी, अब माली ही होते हैं, पहले नहीं। वो पहले ज़माना था, वो मालन ही लाती थी और माली जो है ना वहीं फार्म में काम करता था। अब माली बेचते हैं बाजार में और मालन घर में रोटी पकाती है। रोटी पकाती है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ साहब। अच्छा मोहम्मद हनीफ, आप करते क्या हैं? ये ले टर्नर है, हम ये जो भी आइटम होती है वो बनाते हैं हम। जैसे एजाज फैन है, कूलर है और ये मोटरों का काम है या कोई भी जॉब आ जाए। तो ये आपकी जो ये छोटी सी फैक्ट्री है ये पुरानी दिल्ली के किस इलाके में है? ये जामा मस्जिद के मदरसे वाली गली में है। अच्छा, तो आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मेरे को 14 या 15 साल हो जाएंगे इस काम को करते हुए। अच्छा, तो ये जो चीज़ें आप बनाते हैं ये इनकी खपत कहाँ होती है? ये मीना बाजार में कूलर बनते हैं। अच्छा। और कश्मीरी गेट पे माल जाता है ये बनकर, इसमें सब में लगता है। जो भी आइटम हो सब तरफ लगती है। अब जैसे प्रेस हैं छपाई की, उसके पार्ट बनाते हैं हम, या कभी मोटा पार्ट से सामान आ गया या मीना बाजार के कूलर वूलर आ गए, जो भी आइटम मिले वो बना देते हैं हम। इसका सैंपल होना चाहिए बस। लेकिन ये काम तो बहुत ही आजकल की बड़ी बड़ी मशीनों में जिनमें कंप्यूटर लगा होता है उनमें होता है, और आपने तो छोटी सी खराद लगा रखी है। इस पे आप ये इतना बारीक काम कैसे कर लेते हैं? ये लेथ मशीन के ऊपर जो भी आइटम आती है वो कितनी बारीक क्यों ना बन जाती है आसानी से। उसको बनाने वाले की बस सलाहियत होनी चाहिए।
माशाल्लाह आप में मैं देख रहा हूँ कि वो सलाहियत खूब है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अमीरुद्दीन। ये क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? दही बड़े। ये यहाँ के जामा मस्जिद के मशहूर दही बड़े? हाँ मशहूर चीज़ है। कब से बिक रहे हैं ये काफ़ी दिन से बिक रहे हैं। आप शाम को बेचते हैं या सारा दिन बेचते हैं? सारा दिन लगाते हैं हम। कितनी ऐसी थालें भर भर के बेच देते होंगे? भाई एक थाली बेचते हैं। अच्छा। और इसके साथ आप क्या देते हैं? इधर बराबर में हलीम बिरयानी है, इधर हमारी वो भी आप ही की है बिरयानी? बिरयानी खाने के लिए लोग यहाँ आते होंगे दूर दूर से? बहुत दूर से, मशहूर बिरयानी है ये पूरी बैग भर के कितनी देर में पकती है बिरयानी की? ये कोई 2-2.5 घंटे के अंदर तैयार होती है। अच्छा। इसमें गोश्त कौन सा होता है, बकरी का? नहीं जी, बड़े का गोश्त होता है। बड़े का गोश्त होता है। क्या खास बात है इस बिरयानी की, औरों की बिरयानी से ये बिरयानी क्यों अच्छी है? ये बस बहुत पुरानी दुकान है हाजी जी की। तो ये बिरयानी पकाने की क्या कोई खास तरकीब है इनकी? जी हाँ, मशहूर है ये? जी हाँ, सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरे इलाके के अंदर हाजी जी की हलीम बिरयानी। हाजी जी की हलीम बिरयानी। हलीम भी बेचते हैं? जी हाँ। अच्छा। हबीबुर रहमान सैफी, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के पिछवाड़े। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ दिल्ली में? जनाब आला, हमारा फैब्रिकेटर्स का काम है, गेट जाली का, और हम ये काम तकरीबन हमारे वालिद दादा परदादाओं के दौर से चला आ रहा है ये काम। तो ये जो लोहे का काम आप करते हैं, इसके लिए क्या आपने कहीं कोई फैक्ट्री या कारखाना लगा रखा है? जी हाँ, ये घर के नीचे ही हमारी शॉप है, जिसके अंदर हम वालिद और मैं दोनों साथ काम करते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं माशाल्लाह। इस इलाका मटिया महल के अंदर हम जो हैं बहुत टॉप पर हैं, हमारा काम उरूज पर है। या मगर वो नीचे तो बहुत छोटी छोटी सी दुकानें क्या कोठरियाँ हैं, उसमें ये सारा काम आप कर लेते हैं? जी हाँ, गली के अंदर हमारा माल पड़ा हुआ है, बस लोगों से ताल्लुकात बना रखे हैं, वसी ताल्लुकात हैं। हमदर्दी के तौर पर लोग भी बेचारे कुछ नहीं कहते। अच्छा, आपका जो घर है दुकान उसके फैक्ट्री के ऊपर, वो कितना बड़ा है, ज़रा उसे बयान कीजिए। हाँ, तकरीबन 12 बाई 12 फुट का एक कमरा है। इसके बाहर फिर 12 फुट की एक अंगनाई है, जिसके अंदर एक साइड में बाथरूम है, एक साइड लेटरिन, दूसरी साइड फिर जीने का रास्ता है, तीसरी साइड ऊपर जाने का रास्ता है। फिर ऊपर जाके एक रूम बना हुआ है हमारा, जिसके अंदर बारिश वगैरह आ जाती है, कभी तो कच्चा है, वैसे चादरें पड़ी हुई हैं वहाँ हम जाकर। इस घर में माशाल्लाह कितने लोग रहते हैं सब मिला के? तकरीबन 10 है पहले, अब 11वीं हमारी वाइफ हो गई हैं, समझे। हमारे 8 बहन भाई हैं, 6 भाई 2 बहनें, वालिद वालदा अहलिया। अच्छा, जो घर में बच्चे हैं आपके, उनकी तालीम वगैरह की क्या इंतज़ाम है? हाँ जनाब अला, हमारे तकरीबन सारे ही भाई बहनें पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने भी इंटर किया एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से। मैंने सन 1978 में तकरीबन छोड़ा है। उसके बाद से मैं काम में आ गया। मेरे छोटे भाई हैं शफीक, इन्होंने 10th क्लास की है। उसके बाद हमारे रईस हैं, इनका 10th का एग्ज़ाम हो चुका है तकरीबन, अब रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद मेरी छोटी बहन है शहनाज बेगम, ये भी तकरीबन 6ठी क्लास में है। मेरे छोटे भाई सलीम है, ये 8वीं में है। उसके बाद मुजीब है, वो 4थी में है। तकरीबन सिलसिला जारी है पढ़ाई का, और हमारी कोशिश भी ये है कि कम से कम बच्चे अपनी ज़िंदगी में तालीमी मेयार में बुलंद हों और पिछड़े तबकों से ऊपर रहें। अच्छा, अब आप सब ने माशाल्लाह इतनी तालीम पा ली है और आपके हालात बेहतर हो गए हैं, तो इस पुरानी दिल्ली के इस कदीम शहर की इन तंग और तारीक और पुरपेश गलियों में रहते हुए आपको कैसा महसूस होता है? जनाब आला, बचपन यही हमारा गुजरा है, पैदाइश ही हमारी यहाँ की है, वालिद की हमारी पैदाइश यहीं की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर बड़े मज़े के दिन गुजरते हैं। और शायद जितना सुकून और मज़ा हमें इन इलाकों में आता है, कहीं और जाकर नहीं आता। आपके साथ ये सगीर हसन जैदी साहब एक बैठे हैं, जो बस्ती निज़ामुद्दीन में रहते हैं, यहाँ से बहुत दूर और निस्बतन खुले हुए इलाके में। सगीर साहब, आपको अगर इस घर में आके रहना पड़े पुरानी दिल्ली के, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कब्र के अंदर मैं बंद हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। काली काली जामने जिले ना जी नून वाला नमकीए, और नमकीए सार सावन भादो का रसिया है, चरसियों के कलेजे के दाग छुटा देगी हमारी बेदाना जामन। प्रोग्राम जर्नैली सड़क आपने सुना। इसके तमाम इंटरव्यूज सन 85 में रिकॉर्ड किए गए थे। इस दौरान मटिया महल के लाला अमरनाथ, जिन्होंने कहा था, बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही है हमारी तो अब तक, और कल की कहते नहीं हजूर, कल क्या होने वाला है। अब ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं
और उसी इलाके के हबीबुर्रहमान सैफी, जिन्होंने कहा था, बड़े मज़े के दिन गुजरते हैं और शायद जितना सुकून और मज़ा हमें इन इलाकों में आता है कहीं और जाकर नहीं आता। उन्होंने जमुना पार उस्मानपुर में नया और बड़ा मकान बनवा लिया है। उनके कुनबे के कुछ लोग अब अपने कुशादा मकान में रहेंगे। पार्ट 21। लोग कहते हैं कि हुमायूं को शिकस्त देकर जब शेर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, आखिर दिल्ली को उसका दूल्हा मिल गया। और लोग ये भी कहते हैं कि उस रोज़ शेर शाह ने आईने में अपनी शक्ल देखी तो दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखकर वो उदास हो गया। मैं कहता हूँ कि यूं नहीं हुआ। आईने में सफ़ेद बाल देखकर उसने सोचा होगा कि अब मोहलत कम और काम बहुत हैं। चुनाचे ये अफ़गान बादशाह हिंदुस्तान की तामीर में जुट गया और सिर्फ 5 बरस की हुक्मरानी में इतना काम कर गया कि अक्ल हैरान है। हम दिल्ली पहुँचे तो ये तय करके पहुँचे कि जिस शेर शाह के बारे में अवधी के मारूफ शायर जायसी ने लिखा था, बादशाह तुम जगत के, जग तुम्हारा मोहताज, शहर दिल्ली में उस बादशाह की निशानी ज़रूर देखेंगे। यानी वो खंडर जो कभी अजीमुशान शहर शेरगढ़ या हज़रत दिल्ली थे और अब पुराना किला कहलाते हैं। हमने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के मोतमद खलीक अंजुम को साथ लिया, जो दिल्ली को अच्छी तरह जानते हैं, और फिरोज शाह कोटला से हुमायूं के मकबरे तक उस सड़क पर चले जिस पर तारीख के कितने ही काफले, कितने ही कारवान चलते गए और वक्त की धुंध में गुम होते गए। कोटला के करीब शेरशाह के शहर का पहला दरवाज़ा मिला और फिर पुराने किले के सामने उसके शहर का जुनूबी दरवाज़ा मिला, नहायत बुलंद, नहायत पुरशुकोह, और चहार जानिब बूढ़ी ईंटें, बोसीदा फसीलें, खस्ता हाल बुर्ज और खमीदा दीवारें चुप की ज़बान में हज़ार दास्तानें कह रही थीं। खलीक अंजुम ने कुछ वही बातें ज़रा ऊंची आवाज़ में दोहराईं तो मुझ अजनबी पर उस दरो दीवार का हाल खुला। ये जो आप सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी का बना हुआ दरवाज़ा है और ये फसील का हिस्सा भी गालिबन शेरशाह ही का बनाया हुआ है, क्योंकि शेरशाह के मरने के बाद उसके बेटे ने, जिसका नाम इस्लाम शाह था, उसने इस फसील को पूरा किया था। और फिर ये फसील, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ उसके बाद कई शहर आबाद हुए, वो फसील थी जो ज़ाया हो चुकी, ख़त्म हो गई है। मैं सोच रहा था कि शेरशाह ने अपने शहर के गिर्द जो ज़बरदस्त फसील उठाई थी, उसका सारा मलबा, उसकी सारी ईंटें, उसके सारे पत्थर आखिर कहाँ गए। किताबों में लिखा है कि बाद में जब शाहजहाँ ने अपनी दिल्ली आबाद की और शाहजहाँ आबाद बसाया तो उसके मजदूर यही सारे पत्थर उखाड़ कर ले गए थे। इस पर दिल ने एक और सवाल किया, शाहजहाँ अगर शेरशाह की दीवारें गिरा कर उसके पत्थर ले गया तो खुद शेरशाह अपनी दीवारों के पत्थर कहाँ से लाया होगा। किताबों में लिखा है कि उसने करीब ही फिरोज शाह कोटला के शानदार शहर की फसीलें ढाकर उसके पत्थरों से अपना शहर बसाया था। मगर इस पुराने किले का किस्सा दिलचस्प है। कहते हैं दिल्ली 7 मरतबा बसी और उजड़ी। हकीकत यह है कि 1 दर्जन से ज़्यादा हुकूमतों ने इसे अपना पाया तख्त बनाया। इसकी सारी आबादियाँ जमुना के मगरबी किनारे पर थीं। यहीं पहले पहल वो शहर बसा जिसका नाम इंद्रपथ था। इंद्रपथ के आगे सोनीपथ, बाघपथ, तिलपथ और पानीपत थे। इन्हीं पतों की खातिर हज़रत ईसा से 1000 साल पहले महाभारत की जंग हुई थी। जमुना के किनारे जहाँ इंद्रपथ था, वहीं के खंडरों पर हुमायूं ने अपने शहर दीन पनाह की तामीर शुरू की। वो बस्ती अभी अधूरी थी कि इस मंजर से हुमायूं रुखसत हुआ और शेरशाह आया। उसने हुमायूं के शहर को बढ़ाकर अपना शानदार शहर बनाया, हज़रत दिल्ली। मगर मोहलतें तख्त और ताज से मरूब नहीं हुआ करतीं। कालंजर के किले पर ज़रा सी चिंगारी बारूद के ढेर में जा गिरी और शेरशाह मर गया। कुछ वही हाल उसकी दिल्ली का हुआ। पुराना किला खंडर बन गया, अलबत्ता उसके अंदर तारीख अपनी 3 निशानियां छोड़ गई, एक शेर मंडल, एक शानदार मस्जिद और पानी की एक बावली। वो दूर उफक पर शेर मंडल खामोश खड़ा था। उसके करीब एक तारीखी मस्जिद किसी तवील तवील सजदे में थी और उससे ज़रा पहले हमारी राह में बावली थी। ये सोचकर कि 450 साल पहले हमारे बुजुर्ग इसमें कैसे उतरते होंगे, मैं भी अपना टेप रिकॉर्डर उठाए बावली में उसकी सीढ़ियाँ गिनता गया। 5, 6, 7,
8, 9 और ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती जा रही हैं किला कोहना या दिल्ली के पुराने किले की बावली में। बावली पानी हासिल करने का वो कुआं होता था जिससे पानी निकालने के लिए डोल नहीं डालते थे, बल्कि सीढ़ियों पर उतरते हुए लोग खुद ही नीचे तक जाते थे। और बाज़ जगह सीढ़ियाँ नहीं होती थीं, उसमें हाथी और दूसरे जानवर उतर कर पानी पीने नीचे जाया करते थे। ये किला कोहना की बावली है जिसकी हालत अब बहुत खस्ता है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इसको महफूज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पहले कभी इस किले के रहने वाले पानी पीते होंगे, अब इसमें चिड़ियों का बसेरा है जो यहाँ अंडे दे रही हैं और बच्चे निकाल रही हैं। वो नस्ल तो ख़त्म हुई जिसने ये बावली बनाई थी, अब इसमें परिंदों की नस्ल परवान चढ़ रही है। बावली की सीढ़ियाँ चढ़कर और बाहर निकलकर हम शेर शाह की तारीखी मस्जिद देखने गए। खलीक अंजुम इसके बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उनकी बातें बहुत दिलचस्प थीं उस रोज़। ये मस्जिद शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और इसके जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, ये ख़ास शेर शाह का मिजाज है, क्योंकि आप देखेंगे कि शेर शाह की कुछ ही इमारतें बाकी हैं और उन इमारतों में भी इसी तरीके का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस मस्जिद के जो ये मिंबर हैं और इसके चारों तरफ जो संगमरमर लगा हुआ है और उस पर जो नक्श व निगार है और जो खूबसूरती है और जिस तरह से इस पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई हैं और संग खारा का इस्तेमाल किया गया और फिर दूसरे रंगों के पत्थरों का, उससे मुझे ये महसूस होता है कि ये फ़न तामीर जो है ये शेर शाह सूरी का नहीं है, क्योंकि सूरी के यहाँ जलाल तो है, अज़मत तो है और हैबत है उसकी इमारतों में, लेकिन ये जो हुस्न है और ये जो जमाल है ये हमें मुग़लों के यहाँ नज़र आता है जो अपनी इंतहा पर ताज महल में नज़र आता है। मुझे लगता है कि ये उसकी इब्तिदा है जो यहाँ से हुई है। ये अज़ीमुश्शान मस्जिद कितनी लंबी चौड़ी, ये गालिबन उस ज़माने में जो शहर बना होगा उसकी ये जामा मस्जिद रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद नहीं होती। और फिर ये हिंदुस्तान की पहली मस्जिद कही जाती है कि जिसमें कि इस तरह के नक्श व निगार बनाए गए थे और जिसको सजाया गया था, वरना इससे पहले तो सिर्फ पत्थर रखकर बड़े बड़ी कतालें रखकर मस्जिदें बना ली जाती थी। मस्जिद को सजा कर बनाना और उसके फ़न तामीर में हुस्न पैदा करने का ख्याल गालिबन इस मस्जिद से हिंदुस्तान में शुरू होता है। और आइए अब आगे चलें और किला कोहना में नगीने की तरह जड़ी हुई शेर शाह की वो इमारत देखें जो शेर मंडल कहलाती है। तो अब हम शेर मंडल के सामने खड़े हैं और खलीक अंजुम जो इस इमारत को बचपन से देखते रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। यह है वो शेर मंडल जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था और इसके चारों तरफ जो आप देख रहे हैं दरवाजे से लेकिन बंद, मुझे लगता है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि दरवाजे बाद में बंद किए गए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तामीर ही का हिस्सा है। शेर शाह ने इसको बनाया इसी तरीके से था कि चारों तरफ से बंद रहे और सिर्फ एक उसका दरवाज़ा रहे। अब आप देखते हैं कि 2 मंजिला इमारत है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो एक इमारत और है और एक हॉल है बहुत बड़ा, जिसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको बड़ी तेज़ हवा मिलेगी, बहुत ठंडा मिलेगा गर्मियों में। मेरे ख्याल से वो है वो हिस्सा जिसे कहा जाता है कि हुमायूं ने अपनी लाइब्रेरी बनाया था। फिर वो एक जीना है, ज़रा आगे बढ़ते हैं तो हम चढ़ें उस जीने के ऊपर और देखें वो जीना कैसा है कि जिससे हुमायूं गिरा था। देखिए ये है वो जीना, ये खमदार जीना है और इसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं एक रात शाम को, चूँकि उसको हैत का बहुत शौक़ था, इल्म हैत का, तो एक दिन एक मुश्तरी और ज़ोहरा का क़िरान था, तो वो उन सितारों का ऊपर मुताला कर रहा था कि जब वो नीचे उतरने लगा जीने से तो मगरिब की अजान हुई। कहते हैं कि हुमायूं के हाथ में एक लकड़ी थी जिसे ऐसा कहते हैं हाथ में जो लेकर लकड़ी चलते हैं, तो हुमायूं बैठ गया अजान सुन के और अजान सुनता रहा। जब अजान ख़त्म हो गई तो लकड़ी टेक के जब हुमायूं उठा तो पैर फिसल गया और ऐसा फिसला कि वो नीचे आके गिरा और जब नीचे गिरा तो उसकी कनपट्टी पर चोट लगी और उससे फिर वो जांबार नहीं हो सका, बच नहीं सका। उसकी तस्दीक अभी कर लेते हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़ के देखते हैं कि इनकी हालत क्या है। ये पत्थर की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची बनाई गई हैं जो खम खादी चली जाती हैं और तिकोनी हैं जिन पर पैर टिकाना मुश्किल है और इन पर अगर कोई बैठ जाए
और अचानक उठे तो पीछे की सीढ़ी से टकरा के उसका गिरना बिल्कुल करीना कयास है। इस पर चढ़कर अब मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ हुमायूं ने शायद सितारे देखे होंगे, लेकिन उन सितारों में वो ये ना देख सका कि इन्हें देखकर जब वो नीचे उतर रहा होगा तो फरिश्ता अजल अपनी बाहें फैलाए वहाँ उसका मुंतज़िर होगा। लीजिए साहब, अब हम शेर मंडल के ऊपर के उस हवादार और ठंडे कमरे में आ गए हैं जिसके बारे में खलीक अंजुम साहब की तहकीक यूँ है। हाँ, सांस फूल गया। लेकिन सुनिए आप कि जब हम बच्चा थे तो हम इस इमारत को जब देखने आते थे तो यहाँ पर नीले रंग के टाइलों का काम था। वो अब भी थोड़े थोड़े से टाइल दिखाई दे रहे हैं, देखिए वो टाइल दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीनाकारी था, कुछ पच्चीकारी का काम था। गरज ये कि बहुत ही खूबसूरत लगता था। अभी बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया है। अब आप ये भी देखेंगे कि यहाँ जब हम खड़े हैं तो कितनी तेज़ हवा आ रही है। इससे अंदाज़ा होता है कि हुमायूं ने इसको अपनी लाइब्रेरी बनाया होगा और वो यहाँ पर अपना वक्त किताबें पढ़ने में गुजारता होगा। बड़े बड़े ताक हैं दीवारों में जिसमें क्या जब कि कभी हुमायूं की कदीम किताबें चुनी हों, लेकिन ये कि वक्त ने और इंसान ने इस इमारत के साथ कुछ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया। वक्त ने तो अपने निशान यूँ छोड़े कि इसके रंग और रौगत ख़त्म हुए और इंसान ने अपने निशान यूँ छोड़े कि ये इमारत जो शेर शाह की वजह से मशहूर थी अब गालिबन किसी जीवन कुमार की वजह से मशहूर है, जिसने हर दीवार पे अपना नाम लिखा हुआ है और जो 2 अक्टूबर 1977 को यहाँ आया होगा और अपने नक्श निगार बनाकर इस इमारत को और ख़राब कर गया। शेर शाह और हुमायूं की मौत ने दिल्ली के एक दौर का खात्मा कर दिया। हुमायूं के बाद अकबर आगरे चला गया और जहांगीर अपना पाया तख्त उठाकर लाहौर ले गया। तो अब उस दौर के आखिरी बादशाह हुमायूं के मकबरे पर चलते हैं, जिस मकबरे में एक बादशाह ही नहीं आखिरी हिचकियाँ लेता हुआ एक पूरा दौर दफन है और जिसके एक तारीख कमरे में सिर्फ एक बरहना सर परेशान हाल हुक्मराही ने नहीं एक अहद ने जंजीरें पहनी। ये हुमायूं का मकबरा है और अब हम जहाँ खड़े हैं ये जो बड़ी सी कब्र आपको संगमरमर की नज़र आती है, ये दरअसल असल कब्र नहीं है, ये उसका तावीज़ है। मुग़लों की पहली कोई इमारत जो काबिल ज़िक्र हो वो हुमायूं का ये मकबरा है। फिर जब हुमायूं का इंतकाल हो गया तो उसके 8-9 साल के बाद हुमायूं की एक बीवी हाजी बेगम, जिनको बेगा बेगम भी कहते थे, उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद ये जैसे कि यहाँ पर कब्रें हैं या जो बातें यहाँ के बारे में सुनते हैं उससे अंदाज़ा ये होता है कि इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं रही सियासी एतबार से या किसी और एतबार से। लेकिन जब वो मुग़लों का ज़वाल होता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि इस ज़वाल में इसकी अहमियत बढ़ जाती है और यहाँ पर जो शहज़ादे शहज़ादियाँ बादशाह थे ज़वाल के ज़माने के, मसलन फ़र्रुख सैर है, आलमगीर सानी है, रफ़ीउद्दौला है, रफ़ीउद्दरजात है, इस तरह के जो बादशाह जो बहुत ही गैर अहम थे उनकी कब्रें यहाँ बनाई गई और उन पर वो इतने गैर अहम थे कि उन पर लोहे मज़ार भी लगाई नहीं गई। दारा शिकोह की भी कहते हैं कि कब्र यही है। बाहर जहाँ मैंने आपको दिखाया था जो बाहर चबूतरा है खुले में, वहाँ कहते हैं कि दारा शिकोह की कब्र थी और वहाँ पर भी संगे लोहा नहीं लगा हुआ। आइए अब हम चलते हैं। देखिए ये जो कमरा है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं, ये वो कमरा है जहाँ मुग़ल हुकूमत का सूरज डूबा था। बहादुर शाह ज़फ़र को हटसन ने इसी कमरे से गिरफ़्तार किया गया था। उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र के साथ ज़ीनत महल, जवां बख्त जो उनका शहज़ादा वली अहद था और दूसरे शहज़ादे थे, यहाँ से उन सब को गिरफ़्तार करके ले जाया गया। उनमें से 3 शहज़ादों को तो रास्ते ही में कत्ल करके और उनकी लाशें काबली दरवाज़े पर लटका दी गई थी और ज़ीनत महल और बहादुर शाह ज़फ़र और जवां बख्त जो वली अहद था उस पर इन तीनों पर मुकदमा चलाया गया था और इन तीनों को फिर रंगून भेज दिया गया था। ये अहमियत है इस हुमायूं के मकबरे की और ये अहमियत है इस छोटे से तारीख कमरे की जहाँ मुग़ल हुकूमत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हुआ था।
पार्ट 22। दिल्ली अभी दूर थी कि कारखानों की लंबी लंबी चार दीवारियों पर उतनी ही लंबी लंबी तहरीरों में गेरवे चूने से लिखे हुए इश्तहार नजर आने लगे। बेहतरीन रिश्तों के लिए हमसे मिलें, नंबर 40 फुला फुला रोड। शादी ब्याह के लिए हमारे पास आएं, नंबर 40 फुला फुला रोड। इतनी ज़्यादा दीवारों पर यह इश्तहार इतनी ज़्यादा मरतबा लिखा जा चुका था कि शादी के इस दफ्तर वाले ने बाद में इस लंबी चौड़ी तहरीर का तकल्लुफ़ उठा दिया। अब उसने जगह जगह लिखवा दिया 40 40। लोग पढ़ते थे और समझ जाते थे कि बेहतरीन रिश्तों के लिए नंबर 40 फुला फुला रोड जाना पड़ता है। बिलाखिर बस दिल्ली के इलाके में दाखिल हुई। रौनक और चहल पहल के इस ठाठे मारते हुए समंदर में हमारी बस जिस सिनेमा घर के सामने से गुजरती थी उस पर लिखा था बहू की पुकार, बहू की पुकार। ये नई फिल्म का नाम था। साथ ही एक तस्वीर भी बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि सास और नंदे मिलकर वादे से कम जहेज लाने वाली बहू पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग लगा रही हैं और वो बेचारी चिल्ला रही है। मैंने अपनी बस में बैठी हुई उस लड़की को एक बार फिर गौर से देखा जो सारे रास्ते सरकारी मुलाजमतों के इम्तहानों के बारे में हर महीने छपने वाले रिसाले पढ़ती रही थी, आला मुलाजमतों के ख्वाब देखने वाले लाखों दूसरे नौजवानों की तरह। दफ्तरों में छुट्टी हुई थी। हज़ारों लोग साइकिलों पर सवार घरों को लौट रहे थे। साइकिलों के पीछे कैरियर पर या तो वो सूखी लकड़ी बंधी थी जो अब जलाई जाएगी, या वो बीवी बैठी थी जो जलने से बच गई। कहाँ चलोगे बाबूजी? ऑटो रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा। मैंने होटल का नाम बताया, फुला यात्री निवास। किसी बढ़िया होटल में ले चलूं? उसने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। आपकी मर्जी, उसने कहा। मीटर से चलोगे? मैंने पूछा। हाँ जी, बिल्कुल मीटर से चलूँगा। और यही हुआ। वो बिल्कुल मीटर से चला, मगर 3 मील के रास्ते को उसने 13 मील का रास्ता बना दिया। जब सारे शहर की सैर मुकम्मल हो गई तो फुला यात्री निवास आया। यात्री निवास यानी मुसाफिर खाना। शहर के बीचों बीच 18 मंजिला उम्दा रोशन इमारत, कुशादा कमरे और किराया सिर्फ 80 रुपये। मैंने पूछा, कोई कमरा मिल जाएगा? यस, अंग्रेजी में जवाब मिला। वी हैव गॉट ए रूम। दिल्ली के होटलों का एक अजीब रिवाज है, होटलों के अंदर सब अंग्रेजी बोलते हैं। कितनी रातें रहेंगे? मुझसे अंग्रेजी में पूछा गया। 2, मैंने उर्दू में कहा। 200 रुपये दे दीजिए। फिर अंग्रेजी में कहा गया, मगर 2 रातों का किराया तो 160 रुपये होता है। जी हाँ, जाते वक्त आपको 40 रुपये वापस मिल जाएंगे। मैंने 200 रुपये गिन दिए। मेरे हाथ में 14वीं मंजिल के कमरे की चाबी थमा दी गई। अपना वजनी थैला उठाए मैं अपने कमरे की तलाश में चला और जाकर लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ा हो गया। 80 रुपये की रात का कोई 10वां हिस्सा तो यूं निकल गया। खचाखच भरकर जब लिफ्ट चली तो तबीयत की आज़ाद निकली। मसलन मैंने 14वीं मंजिल का बटन दबाया था, वो 16वीं मंजिल पर रुकी। बड़ी मुश्किल से कमरा मिला। अब खाने का मरहला था जो फिर वहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मिलता था। दोबारा लिफ्ट का इंतज़ार किया। 8 रुपये की रात यूं गुजरी। नीचे लको-दक रेस्तरां में पहुंचा तो कतार में लगना पड़ा। पूरी भाजी और दाल का कूपन एक जगह से मिला, मीठे का दूसरी जगह से और चाय का तीसरी जगह से। अब दूसरी कतार में लगना पड़ा। खाना एक जगह से मिला, मीठा दूसरी जगह से और चाय तीसरी जगह से। और फिर वही हुआ जिसका यकीन था, सख्त बदमज़ा खाना। सामने बोर्ड पर लिखा था, सुबह चाय अपने कमरे में मंगाना चाहें तो 3 रुपये यहीं अभी जमा करा जाइए। मैं बहुत खुश हुआ। चलो एक चीज़ तो है जो खुद होटल वाले जहमत करके कमरे तक पहुंचाएंगे। झट 3 रुपये दिए और तीसरी बार लिफ्ट का इंतज़ार शुरू कर दिया। फिर वही रात का 10वां हिस्सा खोया तो अपना कमरा पाया। बाकी 56 रुपये की रात अंगारों पर गुजारी। दिल्ली में क़यामत की गर्मी थी और 14वीं मंजिल पर भी हब्स का आलम था और पंखे से हवा के बजाय लू निकल रही थी। वो रात मैंने इसी दिल्ली के कदीम शायरों की तरह तड़प तड़प कर काटी और जदीद शायरों की तरह सहर का इंतज़ार करता रहा। खुदा खुदा करके सुबह आई और कमरे के दरवाजे पर वो दस्तक हुई कि जो जरा से कारवाने सुबह से कम न थी। चाय आ गई, मैंने खुश होकर खुद से कहा और लपक कर दरवाज़ा खोला।
اب ایک سفید پوش بیرا آئے گا، گڈ مارننگ کہے گا، میرے سرہانے گرم گرم چائے کی کیتلی، صاف ستھری پیالی، چمکتا ہوا شکردان اور دودھ دان چنے گا اور سلام کر کے چلا جائے گا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ٹرالی کھڑی تھی، اس پر ٹوٹی والا بڑا سا فلٹر رکھا تھا اور ہوٹل کا ملازم وہیں کھڑا تھا، جو مجھے دیکھ کر بولا، اندر سے اپنا گلاس لائیے اور چائے لے جائیے۔ اس صبح میں نے چائے کا گلاس اور صبر کا پیمانہ دونوں اکٹھے پیے۔ اب دلی کی شکل بدل چکی تھی، ایشین گیمز ختم ہو گئے تھے اور شہر کے نقشے پر کتنے ہی پہاڑ جیسے اسٹیڈیم ابھر آئے تھے، فلائی اوور تعمیر ہو گئے تھے، 5 اسٹار ہوٹل بن گئے تھے، وزیر اعظم مسز گاندھی قتل ہو چکی تھیں، سکھوں پر جو گزرنا تھی گزر چکی تھی، مگر اس کی داستانیں ابھی زبانوں پر تھیں۔ مجھے جامع مسجد جانا تھا، میں نے بس پر جانے کا فیصلہ کیا، وہی ٹاٹا کی لوہے کی بسیں جس میں ٹکٹ دینے کے لیے کنڈکٹر آپ کے پاس نہیں آتا، وہ بس کے پچھواڑے اپنے خانے میں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ اسے نوٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو ٹکٹ دیتا ہے اور ریزگاری کے بجائے ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے چھپے ہوئے کوپن دیتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اب ریزگاری نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ 50 روپے کی ریزگاری پگھلا لو تو وہ 60 روپے میں بک جاتی ہے۔ بہت سے کاروبار والوں نے ریزگاری کی جگہ اپنے کوپن چھاپ کر چلائے، کسی نے 1000 روپے کی مالیت کے کوپن چھاپ کر چلائے، 1200 روپے کے کوپن واپس آ چکے تھے اور یہ سلسلہ ابھی جاری تھا۔ میں جامع مسجد پہنچا تو ہاتھ میں فرمائشوں کی وہ فہرست تھی جو میں پاکستان سے لے گیا تھا۔ کسی نے کہا تھا کرتے شلوار کا کپڑا لانا، کسی نے دوپٹوں کی ململ منگائی تھی، کسی نے اچھی ہری الائچیوں کی فرمائش کی تھی اور کسی نے امرس منگایا تھا جسے دلی والے آم پاپڑ کہنے لگے ہیں۔ ایک دکاندار سے اچھا سا کپڑا مانگا تو اس نے ازراہ عنایت اندر سے خاص کپڑا نکلوایا، یہ لے جائیے، پاکستان سے آیا ہے۔ جب سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا ہے، دلی کے اس پرانے علاقے میں ایک تبدیلی آئی ہے۔ اندر جو ہوٹل ہیں جو شاہجہانی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر بنائے گئے ہیں، وہاں لکھا ہے ہم پاکستانی مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہاں پاکستانی روپے تبدیل کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کچھ پاکستانیوں کو دیکھا جو چتلی قبر پر سونے کا زیور خرید رہے تھے۔ ہندوستان میں سونا سستا ہے اور پاکستانیوں کے پاس اسے خریدنے کے لیے پیسہ بہت ہے۔ جس بوڑھے بزاز سے میں نے ململ خریدی وہ سڑک کے کنارے دکان لگائے بیٹھا تھا، کہنے لگا، بابو جی یہ جو پاکستان والے آتے ہیں بڑا سینہ تان کر چلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جیسے ضیاء الحق یہی ہیں۔ کسی اور نے بھی مجھ سے کہا، ٹھیک ہے پاکستان والے بہت مالدار ہیں، مگر یہاں ہندوستان آ کر ہمارا مذاق تو نہ اڑایا کریں، ہم سے یہ تو نہ کہا کریں کہ حیرت ہے تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں، تعجب ہے تمہارے پاس وہ چیز نہیں۔ ایک دلچسپ بات دلی کے ایک سائیکل رکشہ والے نے کہی، آپ کے لندن سے ایک پریوار آیا تھا باؤ جی، امروہے کے مسلمان تھے، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں نے میرے رکشہ پہ چڑھنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے اسے انسان کھینچتا ہے، یہ انسان پر ظلم ہے، ہم اس پہ نہیں بیٹھیں گے۔ بڑی مشکل سے بچے رکشہ پر بیٹھے، میں نے 2 روپے مانگے تھے، انہوں نے ضد کر کے مجھے 10 روپے دیے باؤ جی۔ دلی میں سائیکل رکشہ صرف شہر کے پرانے علاقے میں چلتے ہیں۔ اب مجھے ہری الائچی لینے دریبہ کلاں جانا تھا، دور بھی تھا، گرمی بھی بہت تھی۔ میرے میزبان نے اصرار کیا کہ سائیکل رکشہ پر چلیں گے۔ رکشہ والا 2 روپے بتا رہا تھا۔ میں اس کی سوکھی ہوئی سیاہ پنڈلیوں میں پھولی ہوئی خشک رگوں پر بہتا ہوا پسینہ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ میرے میزبان 1.5 روپے پر اصرار کر رہے ہیں۔ سائیکل رکشہ والے نے جلد ہی ہار مان لی، 1.5 روپے میں سودا ہو گیا۔ میرے میزبان مجھے کوہنی مار کر بولے، دیکھا آپ نے 1.5 روپے میں مان گیا، ورنہ یہاں کا ریٹ 2 روپے ہے۔ میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ میں تو اسے 5 روپے دوں گا۔ وہ بولے کہ یہ غضب نہ کیجیے گا، اس طرح آپ لوگ ان کے بھاؤ اور دماغ دونوں خراب کر جاتے ہیں۔ غریب رکشہ والے کو یہ رکشہ 7 روپے روزانہ کرائے پر ملتا ہے۔ چونکہ کئی ہزار آدمی رکشہ چلا رہے ہیں، اس لیے ہر ایک کے حصے میں روزانہ 12 سے 16 روپے آتے ہیں۔ اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روز صرف 7 یا 8 روپے انہیں ملتے ہیں، اور ان کا بھی کچھ یقین نہیں، نہ معلوم کس دن گھر کا وہ انداتا خون تھوکنے لگے اور نہ جانے کس روز وہ دم توڑ دے۔ ہم دلی کی تنگ گلیوں میں چلے جا رہے تھے،
کوئی مجھے بتا رہا تھا یہ نواب فلاں کی حویلی تھی، یہاں فلاں دہلوی رہتے تھے، یہاں فلاں حکیم کا عظیم الشان مدب تھا، یہاں سے میر فلاں کا اخبار نکلتا تھا، یہاں ان کا کتب خانہ بھی تھا۔ اس روز میری چشم تصور مجھے دلی کے نہیں قیامت کے گلی کوچوں میں لیے پھری۔ اس دن جو منظروں کا تانتا بندھا تو یوں کہ ابھی ابھرتے بھی نہ تھے کہ ڈوب سے جاتے تھے۔ گزرے ہوئے لمحوں کی ایک یلغار آتی تھی اور سر پر آئی ہوئی گھڑیوں کے ریلے میں بہہ جاتی تھی۔ یوں لگا کہ دیواروں کو اور دروازوں کو گویائی مل گئی۔ وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے قریب چچا کبابی کے گولے کے کباب، وہ فراش خانے کے شابو بھٹیارے کا شوربہ، وہ لال کنویں کے حاجی نانبائی کی 100 طرح کی روٹیاں، اور وہ چاندنی چوک کے میاں گنجے نہاری والے جن کی گجر دم کھلنے والی دیگ سے اٹھنے والی وہ لذت سے سرشار مہک۔ گرمیاں ہیں تو خس کی ٹٹیاں لگ رہی ہیں، ہزارے چھوڑے جا رہے ہیں، روسا تہخانوں میں چلے گئے ہیں، شام کو لوگ نہا دھو کر پان کی گلوری منہ میں دبائے بیگم کے باغ جا رہے ہیں یا دلی دروازے سے نکل کر فیروز شاہ کے کوٹلے تک جا رہے ہیں۔ ساون ہے تو لڑکیوں کو کمروں میں چھپایا جا رہا ہے کہ آندھی میں جنوں کی بارات ہوتی ہے اور ان کا پنڈا کورا ہے، اور پھر جو ساون ٹوٹ کے برسا ہے تو پیش دالان کی چھت میں دوہرے جھولے پڑے ہیں اور 2 لڑکیاں پیر جوڑ کر جھول رہی ہیں، گرم گرم پکوان اتر رہے ہیں اور کالی گھٹا لہرانے کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ میں اگر برس کر کھل گیا ہے تو بے فکروں کی ٹولیاں رات رات بھر جمنا کے کنارے فالیزوں پر جا رہی ہیں، کبڈی کے پالے جمے ہیں، جوڑیاں پگی جا رہی ہیں، جمنا میں چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، بیت بازی ہو رہی ہے اور غزلیں گائی جا رہی ہیں۔ گرمی دھل گئی ہے تو کنبے کے کنبے پاس پڑوسی سب پالکی گاڑیوں میں بھر بھر کر قطب صاحب کی سیر کو جا رہے ہیں۔ راستے میں فیروز شاہ کوٹلہ میں ٹھہر گئے، اشوک کی لاٹ دیکھی، شیر منڈل پر چڑھے، امیر خسرو کے مزار اور پھر سلطان جی کی قبر پر حاضری دی، ہمایوں کے مقبرے کا چکر لگایا، مدرسے میں سستائے اور حوض خاص ہوتے ہوئے قطب صاحب جا پہنچے جہاں میلہ لگا ہے، سقے کٹورے بجا رہے ہیں، ڈھول تاشے ہیں، اکھاڑے ہیں، پنکھے کے آگے شہنائی بج رہی ہے۔ یہی حال میٹھی عید اور سلونی عید کا ہے۔ شادی، بیاہ، روزہ کشائی، بچے کی ولادت، بسنت پنچمی، دلی والوں کو جی اٹھنے کے بہانے چاہیے۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، چوک پر تو ہر روز کا میلہ ہے، سارا شہر امڈا چلا آتا ہے، کھانے پینے کی وہ دھوم ہے کہ ایک ڈاڑھ چلے 70 بلا ٹلے کی کہاوت سچ ہوئی جا رہی ہے۔ وہیں اردو بازار ہے، ایک قطار سے کتابوں کی دکانیں ہیں، یہیں حسن نظامی ایسٹرن لٹریچر کمپنی ہے، یہیں سید وسیع اشرف کا کتب خانہ علم و ادب ہے۔ کوئی شاعر، کوئی ادیب ایسا نہیں جو یہاں نہ آتا ہو۔ اور پھر نواب خواجہ محمد شفیع کے دیوان خانے میں اتوار کی اتوار شعر و ادب کی محفلیں جمی ہیں اور مشاعرے ہو رہے ہیں۔ پھر کہیں رمضان خان اور کہیں چاند خان اور مظفر خان راگ راگنیوں کو اپنے سروں سے سجا رہے ہیں، تو کہیں بندو خان اور ممن خان کی سارنگی نے فضاؤں میں تانے بکھیری ہیں۔ اللہ دیے خاں پکھاوجی اور نتھو خاں طبلہ نواز کے ساتھ ساتھ گامی خان نے باج پر تال کا وہ جادو جگایا ہے کہ ایک عالم مسحور ہے۔ انہی گلیوں میں امیر جان اور مجیدن بائی سے لے کر نوشابہ جان تک کتنی ہی آوازوں نے دلی کی فضاؤں میں رس کھولا ہے۔ وہ پتنگوں کے پیچ، وہ کبوتروں کی اڑانیں، وہ بٹیروں اور مرغوں کی لڑائیاں، وہ اکھاڑوں میں کشتیاں اور وہ جمنا میں تیراکیاں، سب جیسے ایک مسلسل خواب کی طرح چلی جا رہی ہوں کہ اچانک آنکھ کھل جائے اور وہ سارے منظر بھاپ بن کر اڑ جائیں۔ شام ہو چلی تھی اور میں ہوٹل کو لوٹ رہا تھا۔ ڈیری کے کیبن میں تازہ دودھ کی سپلائی آنے میں ابھی دیر تھی اور سینکڑوں لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے منجھی ہوئی پتیلیاں اور بالٹیاں لیے لمبی سی قطار میں کھڑے دودھ کا انتظار کر رہے تھے۔ دن کا رنگ سولا چکا تھا۔ جامع مسجد کی اندرونی دیواروں میں جتنی اونچائی تک انسان کا سراپا پہنچتا ہے اتنی اونچائی تک دیواریں میلی چکٹ ہو چکی تھیں، اور اردو بازار کے دوسرے سرے پر مرغیوں اور مچھلیوں کی بدبو نے ٹوٹے ہوئے خواب کو اور بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ دلی کی آخری شمع کبھی کی بجھ چکی تھی اور وہ شعر کبھی کا پڑھا جا چکا تھا، تذکرہ دلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔
पार्ट 23। जिस दिन मैं आगरा पहुंचा, यूं लगता था कि इस दिन के बाद शहर में कोई बिन ब्याह नहीं रहेगा। हर तरफ शादियां हो रही थीं, इतनी बारातें आ रही थीं, जा रही थीं कि राह चलना दूभर था। बैंड बाजों का वो शोर के खुदा की पनाह। गली गली, कूचे कूचे ढोलक की थाप पर ब्याह के गीत अलापे जा रहे थे। इतनी ढेर सारी शादियां देखकर मैंने सोचा कि अगर हर 10 साल में आगरे की आबादी लाख सवा लाख बढ़ जाती है तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। मैं बस से उतरा और साइकिल रिक्शा पर बैठकर होटल की तरफ चला तो पहले ही चौराहे के बीचों बीच एक प्राइवेट क्लिनिक का पोस्टर नज़र आया। जो औरतें उम्मीद से हों और चाहे कि वो उम्मीद से ना रहें, क्लिनिक में जदीद आलात की मदद से उनके सर से ये बोझ उतारा जा सकता है। कहते हैं कि जिन इलाकों में खुशहाली आती है वहाँ बच्चों की पैदाइश कम हो जाती है। ताज महल की सिर्फ एक झलक देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से आए हुए सयाह आगरे की ज़िंदगी में इतना पैसा घोल जाते हैं कि मुझे अपने क़याम में ना कोई फाका ज़दा नज़र आया, ना कोई नंगा। मेरा रिक्शा वाला मुझे बता रहा था कि वो दिन भर खून पसीना एक नहीं करता। इधर दिन की आमदनी पूरी हुई, उसने रिक्शा बंद किया और घर चला गया। एक बार वो आगरा छोड़कर जयपुर गया था, मगर 2 वक्त पेट भरना मुश्किल हुआ तो आगरे वापस आने ही में उसने आफियत समझी। वो रिक्शा चलाता जा रहा था, अपनी कहानी कहता जा रहा था। मैंने पूछा कि जयपुर और आगरे के धंधे में क्या फ़र्क है। जयपुर का धंधा और है साहब, आगरे का धंधा और है। अच्छा, आगरे का धंधा कैसा है? यहाँ जो हम एक सवारी से 50-100 रुपये भी कमा सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या ऐसा भी होता है कि दिन भर के लिए कोई ले लेता है रिक्शा? हाँ जी, दिन भर के लिए भी लोग ले लेते हैं रिक्शा के? जी हाँ। एक मुसाफिर से 50 रुपये 60 रुपये कैसे कमाते हो? अरे कमाते क्यों नहीं? मैं होटल पहुंचा। साफ सुथरा, सजा धजा, एयर कंडीशनड होटल, लोग अच्छे और मिलनसार, दिल्ली से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब मुझे आगरे के नामवर शायर और दानिश्वर मैकश अकबराबादी साहब से मिलना था। वो पुराने वक्तों की निशानी हैं और उर्दू अदब में उनका बड़ा मकाम है। पुराने शहर में कहीं कोई सेब का बाज़ार है, उसके अंदर कोई मेवा कटरा है, उसमें रहते हैं। चुनाचे मैं पुराने शहर की तरफ चला। अकबर और शाहजहां के किले की शौकत व अज़मत को जी में सराहता, जहां आरा बेगम की बेमीनार मस्जिद के 3 बड़े बड़े गुंबदों की सरबलंदी का दम भरता मैं आगे बढ़ा तो आगरे के बाज़ार आ गए। जूते, चप्पलों और सैंडलों से खचाखच भरी हुई दुकानें, सिले सिलाए कपड़ों से पटी हुई दुकानें, मथुरा के पेठे से लेकर बर्फ़ पर आरास्ता मक्खन के पेड़ों तक 100 तरह की मिठाई बेचने वाले हलवाई, और फिर आगरे की चाट की दुकानों में तली जाने वाली आलू की टिक्कियों की निहायत लजीज महक। इन मंजरों से गुजरते हुए बाज़ारों और गलियों के फर्श पर जो निगाह गई तो देखा कि शाहजहां के किले जिस सुर्ख पत्थर से बने हुए हैं वैसे ही सुर्ख पत्थरों की लंबी लंबी सिलों से ये गली कूचे पुख्ता किए गए होंगे। कई 100 बरस तक कोई बारिश, कोई सैलाब इन पत्थरों को अपनी जगह से हिला न सका, मगर नए दौर में जब पानी की फराहमी और निकासी के लिए नालियां डालने की ज़रूरत पड़ी तो गज़ब हो गया। शाहजहां के ज़माने के ये पत्थर उठाए गए और बाद में जब इन्हें दोबारा जमाने की कोशिश की गई तो फिर कोई इंजीनियर ऐसा न मिला जो इन्हें वैसे ही सलीक़े और वैसे ही करीने से चुन दे। नतीजा ये हुआ कि शहर आगरा के किसी घर के रास्ते में अब कोई कहकशा नहीं है और इन्हीं पत्थरों पर चलकर मैं मैकश साहब के घर पहुंचा।
بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، نقاہت کا عالم تھا۔ میرے آنے کی خبر پائی تو اٹھ بیٹھے اور دیر تک آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے۔ میں نے پوچھا کہ پرانے آگرے کے مقابلے میں آج کا آگرہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ سڑکوں کے پتھر تو ابھی وہی ہیں، اور باقی یہاں کے آدمی بالکل تبدیل ہو گئے۔ اب ایسے ہیں کہ ہم بازار میں چلے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی اور شہر میں آئے۔ وہ آدمی ختم ہوئے اور مکانوں کے رہنے والے تبدیل ہو گئے سب، اور ہم پہچانتے نہیں ہوں ان آدمیوں کو کہ وہ کون ہیں جو ہمارے ہمسایہ ہیں۔ میکش اکبر آبادی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زیارت بھی عبادت ہے۔ جن مکانوں اور بازاروں کا ذکر کر رہے تھے وہ شاہجہاں اور اورنگزیب کے عہد کی تصویریں ہیں۔ لمبے لمبے بازار، دو رویا دو دو منزلہ عمارتیں، اوپر برآمدے، سائبان، دریچے، کٹہرے، محرابیں، چھجے، چلمنے اور نیچے دکانیں ہی دکانیں۔ یہی حال ایک کے اندر ایک چلی جانے والی تنگ گلیوں کا ہے، مگر اب لوگ پرانی عمارتیں ڈھا کر مارکیٹیں اور فلیٹ بنا رہے ہیں۔ جہاں مزدور لگے ہوں، جہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، سمجھیے مارکیٹیں بن رہی ہیں، دکانیں نکالی جا رہی ہیں۔ بے شمار عمارتیں کھنڈر ہوئیں، پھر بھی مغل عہد کا یہ شہر ابھی اپنی اصل حالت میں ہے۔ شاہجہاں کے شہروں کا جسے نظارہ کرنا ہو ابھی جا کر دیکھ آئے۔ تاج محل تو شاید رہ جائے گا، یہ گلی کوچے نہیں رہیں گے۔ آگرے کی پرانی آبادی اور ان گلیوں کے بارے میں شہر کے قدیم باشندے حکیم مبین الزما صاحب نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں۔ شاہان مغلیہ کے زمانے میں آبادی جمنا پار سے تھی، وہاں سے لے کر کے جمنا پار سے فتح آباد تک، اور اکبر کے زمانے میں جو آبادی تھی وہ لوہا منڈی سے لے کے متھرا تک۔ بڑے بڑے اسٹیشن تھے وہ تھے، سب ختم ہو گئے، اب سب قبرستان ہو گئے۔ اب آبادی شاہجہاں کے بعد جو ہوئی ہے تو سٹی میں ہوئی ہے، تو چند بلڈنگیں بنا گئیں، پتلی پتلی سڑکیں۔ پہلے زمانے میں چوڑی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، بہت پتلی پتلی، تو یہ سڑکیں بنائی گئیں۔ اس سے پہلے جو آبادی تھی وہ ادھر ہی تھی، شہر بہار۔ یہ تھے حکیم مبین الزما صاحب، ان کی باقی باتیں ذرا دیر بعد۔ وہیں سیف کے بازار میں آگرے کے نامور صوفی، عالم، شاعر اور ادیب شاہ دلگیر مرحوم کا گھرانہ تھا۔ وہیں قدیم حویلی میں ان کے بیٹے سید قیام الدین شاہ صاحب رہتے ہیں۔ اب ضعیف ہو گئے ہیں اور نہ صرف اپنے خانوادے کے علم و ادب کے خزانوں کو بلکہ اعلیٰ روایات کو بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی حاضری دی۔ پرانے لوگوں کی محبت، شفقت اور عنایت گویا میری ہی منتظر تھی۔ شاہ صاحب سب سے بڑے مسافر نواز نکلے۔ ان کے حکم پر ان کے بھتیجے نواب شاہ کی سفید جھلملاتی کار نکالی گئی اور یوں مجھے آگرے کی سیر کی سعادت نصیب ہوئی۔ نواب میاں چوڑے چکلے، گورے چٹے جوان، پورے شہر پر ان کا دبدبا۔ راہ میں ہر ایک نے انہیں سلام کیا۔ میں نے بھی ان کی جرأت کو سلام کیا، کیونکہ ان کی کار کی نمبر پلیٹ اردو میں تھی۔ وہ مصر تھے کہ قانون اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ حکام نے بھی آج تک اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اسی دوران ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ شمس الدین مصور ہیں، اتنے نازک اور خوبصورت نقش ابھارتے ہیں کہ تاج محل اگر اس زمانے میں بنتا تو وہ بناتے، مگر اس نامور مصور کی بینائی اب اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، بہت سے احباب کی طرح۔ آگرے کی ایک اور شخصیت جسے بھولنا مشکل ہے، حکیم سید مبین الزما قادری صاحب تھے، جنہیں دنیا مولانا مبین کے نام سے جانتی تھی۔ چھوٹا سا قد، سرخ و سفید رنگت، مہندی سے رنگے ہوئے جھلملاتے بال اور داڑھی، سفید براق لباس، چاندی کے کام کے سلیم شاہی جوتے، پھرتیلا بدن، جس محفل میں بیٹھ جائیں اسے گل و گلزار بنا دیں۔ میں اصرار کر کے حکیم صاحب کی جوانی کے قصے سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نوجوانی میں کھلاڑی رہے ہیں، آپ کیا کھیلتے تھے؟ میں ایک تو کرکٹ کھیلتا تھا، ایک فٹ بال میں گول کیپر کھیلتا تھا۔ تو کرکٹ میں فاسٹ بولر تھا، پانیئر تھا، لیڈر تھا، یہ اخبار نکلتے تھے، ان میں سب میں میرا ریکارڈ ہے، اور یہاں تک ریکارڈ ہے 5-5، 5 رن میں 5 یہ کیے ہیں میں نے، اور 19 قدم بھاگ کر کے میں گیند پھینکتا تھا، اور میرے کئی آدمی لنگڑے کیے ہوئے ہیں، 2 کی ناکیں میں نے توڑ دی ہیں۔
बैजल का घुटना टूट गया, आज तक वो बैसाखी लेके चलता। यहाँ मिसालें मौजूद हैं। यहाँ एक उस्ताद मजीद थे, उनकी नाक के, अनवर बहार अब मौजूद है जिंदा, उनकी नाक के 2 टुकड़े कर दिए। सन 85 में जब हकीम साहब सरापा शगुफा बने हुए थे, वो 81 बरस के हो चुके थे और यूं लगता था कि अभी बहुत जिएंगे, मगर अगले ही बरस कहीं राह चलते गिर पड़े, कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने बचाना चाहा, मगर कुदरत की फास्ट बॉलिंग के आगे वो खुद भी न ठहर सके। उस रोज़ अंग्रेज़ों से अपनी दोस्ती का और ख़ुद उन्हीं की तरह अंग्रेज़ी बोलने का किस्सा सुना रहे थे। मैंने पूछा कि हकीम साहब, आपने अंग्रेज़ी कहाँ तक पढ़ी है? सिर्फ किंग रीडर पढ़ी है, इंग्लैंड तक। अच्छा, ज़रा अपना और अंग्रेज़ों का मुकालमा को सुना दीजिए। तो सुनिए। एक अंग्रेज़ था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। तो जब कभी मिलता मुझे तो वो कहता, डॉक्टर चेरियो। मैं कहता, ऑलराइट चेरियो। वो नहीं समझता चिड़ियो कह रहा है, चेरियो कह रहा। Oh, I will, next time, I will come. मैंने कहा, ऑलराइट, you will come in my house. ऑलराइट, ऑलराइट। और चेरियो कह के चला, मैं चिड़ियो कह देता। हकीम साहब ने दुनिया देखी थी, यूपी के देहात की ज़िंदगी का हाल उस रोज़ सुना रहे थे। आप भी सुनिएगा। आखिर में आगरे में बारातों का हाल मैं अपने बोलते हुए रोज़नामचे से आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले हकीम सैयद मुबीनुज़्ज़मा क़ादरी साहब मरहूम, जो उस रोज़ यूपी के गांवों की औरतों का किस्सा सुना रहे थे। अब सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि ऐसे जिंदा दिल लोग भी मर जाया करते हैं। लीजिए, आप भी सुनिए। गांव का ये किस्सा है कि जब औरतों की शादी हो जाती है, वो अपने मैका छोड़ के ससुराल जाती हैं, तो एक रथ होता है। तो रथ में वो बैठ के पर्दे डाल के आगे आदमी बैठ जाते हैं और रोती हुई जाती हैं। उनका रोना ये होता है, अरे मेरे लल्लू रे कितना गुजावा तेरे नानी रे, ओ मोड़ा, अरे मैं जाएगा घर को कैसी देखूंगी रे मैयो, ओ मैयो मैं क्या करूँ मैयो। तो लोग आन के खड़े हो जाते दरवाज़ों पे, कौन औरत जा रही है रोती। तो इस तरीके से इनका रोना होता है। और इनका गाना एक और होता है, इनका गाना ये होता है, और जो मायनी होता है, वो आप ही शायर नहीं है, खुदावंद ताला ने उनको भी शायर बनाया। और सरम से देखिए उसके दुजू मायने होते हैं। उनका सुनिए गाना। और फिरंगी नल मत लगवा वेरे, मोरी तबीयत घबरा वेरे, और फिरंगी। क्या मतलब? पनघट पे औरतें पानी भरने आती हैं तो एक से कुएं पे अपना किस्सा कहती रहती हैं। तो कह रही हैं कि जब नल लगवा देगा तो हम कोई बात भी नहीं कर सकेंगे, न गांव का कुछ तो नल मत लगवा, जहाँ में आई तबीयत घबरा। हाँ, फिर उसका देवर जो साथ लेके जाता है गांव से, तो साथ होती है, तो वो ये गाती हुई चलती है। कहते हैं, ये अल्फाज होते हैं उसके। अरे कांटा लागोरी देवरिया रे, अरे मुँह पे गैल चला ना जाए रे, जोई चना की खा लूंगी चूल्हे चल गंगा पार। मैं जिस रोज़ आगरा पहुंचा, गालिबन वो शादियों का दिन था। यानी आज के दिन को योम निकाह कहा जा सकता है आगरे की ज़बान में, कि हर तरफ शादियां हो रही हैं और जिस गली से जिस बाज़ार से गुजरते हैं बैंड बाजे, और उसके पीछे पीछे लोग रोशनियां उठाए हुए, कुछ तो वही रिवायती हंडे की रोशनियां हैं और कुछ अब जदीद तर्ज की ट्यूब लाइट्स उठाए हुए हैं लोग, जिनके पीछे पीछे पहियों पर एक जनरेटर चलता है और उसकी मदद से न सिर्फ वो ट्यूब लाइट्स जलती हैं बल्कि एक और बहुत मेहराब बनाते हैं खूबसूरत सी रंगीन रोशनियों की, और वो भी साथ साथ रोशन। और उसके पीछे बल्कि उसके आगे आगे दूल्हा घोड़े पे सवार होता है। हर दूल्हा का यहाँ मालूम होता है घोड़े पे सवार होना बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में हाथी दस्तयाब नहीं है, वरना आगरे का दूल्हा हाथी बना बैठे, अजीब बात है। पार्ट 24।
अच्छा है ये सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, हज़रत शेख सलीम चिश्ती की आखिरी आराम गाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शेखू बाबा की जाए पैदाइश, सरजमीन हिंद का एक अजीमुशान शहर जिसे अकबर ने बसाकर सुनसान टीलों को गुलो गुलजार कर दिया और जहाँ से वही अकबर एक रोज़ उठा और चला गया। जो मदफून थे वो मन और मिट्टी तले दबे रह गए, बाकी अमीर, उमरा, वज़रा, रऊसा, दरबारी, बाजारी सब ने अपना माल असबाब समेटा और बादशाह के साथ इस शहर से निकल गए और फिर अपने पीछे वीराने छोड़ गए। हज़रत सलीम चिश्ती का मदफन ना होता तो आज इन महलों में जंगल उगे होते, इन दरबारों में दरिंदों का बसेरा होता और हवेलियों के दालानों में हू का आलम होता। मैं जो पहुंचा तो क़यामत की गर्मी थी। 10,000 नमाजियों के लिए बनाए जाने वाले बेहद बड़ी जामे मस्जिद के सहन का फर्श फूक रहा था और बादशाही दरवाजे से शेख सलीम चिश्ती के रोज़े तक नंगे पैर जाने वालों के लिए 1-1.5 फुट चौड़ी टाट की पट्टी बिछा दी गई थी। शेख की दरगाह में गैर मुल्की सयाहों को आगरे की अंग्रेजी में बताया जा रहा था कि ये अकबर के गुरु की कब्र है और खबरदार किया जा रहा था कि वो किसी चीज़ को हाथ न लगाएं। Akbar Guru, name of Sheikh Salim Chishti, his by breaking Akbar goddess son. The holy man dead body 7 feet buried here, made of sandalwood canopy. Sandal on inlay work, mother of pearl, rainbow color. Don't touch it, don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. फतेहपुर सीकरी में इन सयाहों को देखकर मुझे याद आया कि मैं लंदन से चलकर सन 1985 में यहाँ आया हूँ। इंग्लिस्तान का अव्वलीन सयाह रॉल्फ फिंच पूरे 400 साल पहले सन 1585 में लंदन से यहाँ आया था और उसने लिखा था कि आगरा और सीकरी दोनों शहर लंदन से बड़े हैं। दोनों के दरमियान 23 मील लंबी सड़क दुकानों से भरी हुई थी और एक बड़ा शहर मालूम होती थी। रॉल्फ फिंच के 400 साल बाद मैं जब 23 मील लंबी इसी सड़क से गुजरा तो बाएं हाथ को हिंदुस्तानी फजाइया का ज़बरदस्त अड्डा था कि जिसकी तवानाई फट पड़े तो पूरे मुल्क लरज उठें, लेकिन चंद मील आगे एक वीराने में वो पुल था जहां डाकू दिन दहाड़े मुसाफिरों को रोककर उनके बटुए छीन रहे थे, उनकी घड़ियां उतरवा रहे थे और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फतेहपुर सीकरी देखने की जा है। नौबत खाना, दीवान आम, दीवान खास, ख्वाबगाह, महल की औरतों के लिए छोटी सी मस्जिद, हिंदू ज्योतिषी के बैठने का ठिकाना, वो 25 ही जिसके खानों में कौड़ियाँ नहीं कनीज़ें चला करती थीं। बादशाह और उनके साथी बुलंदी पर बैठकर पासे फेंकते थे और फर्श पर बने खानों में खड़ी हुई कनीज़ें अपनी घनी सियाह पलकें उठाए आगे बढ़ने के इशारे की मुंतज़िर रहा करती थीं और जो पिट जाती थीं तो थकी हारी वहीं एक चबूतरे पर बैठकर वो फूट फूट कर रोया करती थीं और बादशाह हंसा करते थे। अब वहाँ सन्नाटा सिसकियाँ भरा करता है। करीब ही 4 चमन है जहाँ गुलाब के फव्वारे चला करते थे और दिलकश हौज के दरमियान आरायशी चौकी पर बैठकर मियाँ तानसेन गाया करते थे। मेरे रहनुमा नवाब भाई ने बताया, यहाँ आराम करते थे, यहाँ बैठते थे, तानसेन यहाँ गाना गाता था बैठ के। नहीं 4 चमन जिसको कहलाते, आराम करने की जगह नीचे है, यहाँ गुलाब का फव्वारा चला करता था। वो भी फूल बना हुआ है जिसमें गुलाब भरा रहता था और फव्वारा चलता था। वहीं वो दुनिया का सबसे खूबसूरत कमरा है जिसमें कहते हैं कि अकबर की तुर्क सुल्ताना रहा करती थी। उसकी दीवारों पर जंगल और बागों के ऐसे मंजर तराशे गए हैं कि आंख तय नहीं कर पाती कि क्या ना देखे, क्या देखे और कितनी देर देखे। आज भी एक एक पत्ता, एक एक बूटा सही सलामत है, अलबत्ता बाद में किसी ने जानवरों और परिंदों के नक्श तोड़ दिए क्योंकि वो मजहब में हराम हैं। वहीं वो इमारत है जिसका नाम आँख मिचोली है। शहजादियाँ वहाँ आँख मिचोली खेला करती थीं। वहीं वो ताक बने हैं जिनमें अपने जेवर रख दिया करती थीं ताकि भाग दौड़ और छीना झपटी के दौरान कहीं नग न झड़ जाएं, कहीं मोती न बिखर जाएं। कैसी रौनक होगी कि आज पूरे 400 साल बाद भी इस जगह यूं महसूस होता था कि लड़कियों के खिलखिला कर दौड़ने और हंसने की आवाज़ें जैसे अभी ज़रा देर पहले तक गूंज रही थीं। इस भंडार से महल के सारे ही गोशे तन्हा और वीरान से थे, मगर बेरौनकी कहीं नहीं थी, खौफ कभी नहीं आता था।
نواب بھائی نے اس روز یہی بات اپنے فلسفے کے رنگ میں کہی تو کچھ یوں کہی. ایسے بھی آپ کہہ لیں نیک پیسہ سمجھیں یا اس کی نیک محبت سمجھیں جو بنوایا، ورنہ آج ایک محل بنا کے اگر اکیلے گھس جا سونے میں تو آپ کی طبیعت نہیں لگے گی. صحیح ہے. اسے آپ تنہا بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف اور آپ کی طبیعت خوش ہوتی رہے گی. ویرانہ نہیں معلوم ہوتا. یہ چیز دیکھنے کی ہے بس. یہ فرق ہے ہمارے اور اس کے پیسے میں اور آج کے زمانے کے پیسے میں. میں اس وقت سکندرہ میں ہوں، آگرہ سے 15 میل دور سکندرہ میں، جہاں شہنشاہ اکبر کا مزار ہے. اور اس وقت میں اس کی چوتھی منزل پر، یعنی بالکل بالائی منزل پر ہوں. زور کی آندھی آئی ہوئی ہے، گرد اٹھ رہی ہے اور شہنشاہ اکبر کے مزار پر سناٹا چھایا ہوا ہے. ان کی اصل قبر تو نیچے، بہت نیچے تہخانے میں ہے، اور یہاں چھت پر جو 4 منزل اوپر ہے، نہایت خوبصورت تعویذ ان کی قبر کا سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے، اور اس کے چاروں جانب سنگ مرمر کے دریچے ہیں اور محرابیں ہیں. قبر پر اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کیے گئے ہیں. قبر کی ایک جانب اللہ اکبر اور دوسری جانب جل جلالہ لکھا ہوا ہے، جو اللہ جانے ان کے دین محمدی کی نسبت سے ہے یا اللہ کی شان میں ہے. اتنے بڑے اور اتنے شاندار مقبرے پر جو بے رونقی ہے، اسے دیکھ کر بڑی عبرت ہوتی ہے. اکبر سب سے بڑا بادشاہ تھا، مقبرہ بھی اسی مناسبت سے سب سے بڑا ہے، لیکن اس پر رونق نہ معلوم کیوں سب سے کم ہے. یہ شور سنا آپ نے؟ یہ تاج محل ہے، اور اسے اس وقت بھرت پور کے جاٹ لوٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ ارجمند بانو کی قبر پر آنے والے من چلے نوجوان چلا چلا کر اس پرشکوہ عمارت کے عظمت اور جلالت والے گنبد میں اپنی آواز کی گونج سن رہے ہیں. جرنیلی سڑک کا سفر مجھے وہاں لے آیا ہے جہاں میں نے عمر بھر چاہا تھا کہ کوئی مجھے لے جائے. تاج محل عمارت محبت سے سرشار ایک بادشاہ کی بنوائی ہوئی. نام پورب، پچھم، اتر، دکھن سے آنے والے دیہاتیوں کا رکھا ہوا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل کا یہ نام کبھی نہ تھا. یہ روضہ ممتاز محل تھا. دیہاتیوں کے منہ سے ممتاز محل نہ نکلا تو انہوں نے اسے تاج محل بنا دیا. اور یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خوابوں جیسی اس شفاف عمارت کو کس طرح داغدار کیا گیا. سن 1761 میں جب جاٹوں نے آگرہ لوٹا تو تاج میں جڑے ہوئے نگینے خنجروں کی نوک سے اکھاڑ کر لے گئے، اور ایک انگریز وائس رائے نے آ کر ہندوستان کی حالت بہتر بنانے کی ٹھانی تو سوچا کہ تاج محل گرا کر اس کا سنگ مرمر بیچ دیا جائے. حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ بہت تھوڑے پیسے ملیں گے. جو پتھر جہاں جمع ہے وہی قیمتی ہے، ایک بار نیچے آ رہا تو راہ کے پتھر جیسا حقیر ہو جائے گا. وہ تو لارڈ کرزن نے آ کر شاہجہاں کی اس یادگار کو مرمت کرا کے تقریباً نیا کرایا. اس کی چھت میں خوبصورت لیمپ آویزاں کیا، اور جو رنگ برنگے پتھر خنجروں کی نوک سے نکال کر لوگ لے گئے تھے وہاں اس نے رنگ بھروایا. آج جہاں لڑکے ہاؤ ہو کر رہے ہیں، 17ویں صدی تک یہ تاج محل بند رکھا جاتا تھا اور صرف کبھی کبھار کھلتا تھا، اور غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. شروع کے یورپین سیاح اسے اندر سے دیکھنے کی تمنا لیے واپس چلے گئے. اب تو نیچے تہخانے میں شاہجہاں اور ارجمند بانو کی اصل قبریں بھی سیر کرنے والوں کے لیے کھلی ہیں، اور اس ذرا سے کمرے میں اتنی خلقت ٹھوسی رہتی ہے کہ دم گھٹتا ہے اور صحیح معنوں میں قبر کا لطف آتا ہے. اب سنا ہے کہ وہ جگہ بند کی جا رہی ہے. پوری عمارت میں اس قدر ترتیب ہے کہ جو چیز دائیں جانب ہے ویسی ہی چیز بائیں جانب بھی ہے. ایک طرف سنگ سرخ کی مسجد ہے تو دوسری طرف اس کا جواب ہے جو تسبیح خانہ کہلاتا ہے. صرف ایک چیز نے اس ساری ترتیب کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور وہ ہے خود اس عمارت کے خالق کی قبر. سامنے قلعہ آگرہ صاف نظر آتا ہے، اس میں وہ برج بھی
जहां बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ ज़ईफ बादशाह अपनी बुझी बुझी सी आंखों से ताजमहल को देखा करता था। बेटे के हाथों कैदोबंद की सऊबतें उठाकर जब वो शाहजहां इस दुनिया की कैद से रिहा हुआ तो औरंगज़ेब ने लाकर उसे ताजमहल के अंदर दफन कर दिया। अब लोगों ने शाहजहां को पहुंचा हुआ बुजुर्ग करार दे दिया है और हर साल रजब की 25, 26 और 27 तारीख को यहाँ शाहजहां का उर्स होता है। कव्वालियाँ, मीलाद और मुशायरे होते हैं। और तो और लोगों ने मन्नतें मानने और चढ़ावे चढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा गज़ब हुआ है, किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए किसी बाबू साहब ने ये चढ़ावे बंद कराने का फैसला किया, मगर फिर जो इस इमारत के सीने में एक कील गाड़ी गई उसका मंजर देखकर उस वक्त मुझ पर जो गुजरी वो मेरे बोलते हुए रोजनामचे में महफूज है। लीजिए आप भी सुनिए। ताजमहल के अंदर दीवार पर एक कीलों से एक बोर्ड ठुका हुआ है जिस पर लिखा है ऑफरिंग्स ऑफ एनी काइंड इन द मोनूमेंट आर नॉट परमिसिबल। मज़ार में किसी किस्म के चढ़ावे की इजाज़त नहीं है। आने वालों से लिहाजा दरख्वास्त है कि वो किसी किस्म का चढ़ावा ना करें। सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट का ये नोटिस है जिसे नहायत बेएहतियाती से दीवार में मोटी मोटी कीलों से ठोक दिया गया है। इससे पहले यही नोटिस बोर्ड सामने वाली दीवार पर इसी तरह मोटी कीलों से ठोकने की कोशिश की गई थी। लिहाजा ताजमहल की इस नहायत शानदार इमारत का ये हिस्सा टूट कर गिर पड़ा है। चढ़ावे चढ़ें या न चढ़ें, इमारत को जो नुकसान पहुंच गया अब इसे खुद शाहजहां आके भी दुरुस्त नहीं कर सकते। मुझे ताजमहल देखकर दुख हुआ। इस इमारत की ऐन पुष्ट पर टेलीविज़न का एरियल का मीनार खड़ा कर दिया गया है जिस पर सुर्ख बत्तियां जलती हैं। यूँ लगता है जैसे किसी रुखसार पर खराश डाल दी गई हो और उससे खून के कतरे टपक रहे हों। बड़े दरवाज़ों के गिर्द संगे मरमर में तराश कर सियाह पत्थर से कुरान की जो आयतें लिखी गई हैं उनका सियाह पत्थर ढीला पड़ गया था, हरूफ अपने जोड़ से निकल रहे थे और साफ नज़र आता था कि यह आयत कुरानी किसी भी लम्हे नीचे आ रहेंगी। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि यही हुआ। ताजमहल चांदनी रातों में खुला रहा करता था, अब सूरज डूबने के बाद बंद कर दिया जाता है। डर है कि सिख दहशत पसंद इसे बारूद से न उड़ा दें। मुमताज़ महल की कब्र के ऊपर कर्जन का पेश किया हुआ अजीमुशान लैंप बिल्कुल तारीक पड़ा रहता है। सिर्फ 100 वाट का एक नंगा बल्ब लगा है, वो भी फ्यूज़ हो जाता है या लोड शेडिंग की जद में आकर शाम ही से मुफलिस का चिराग हो जाता है। कहते हैं कि ताजमहल का अपना हुस्न अपनी जगह, मगर इसके असल हुस्न का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इसे देखने के लिए किसके साथ आए हैं। कहीं पूरब से आया हुआ एक नौउम्र दूल्हा और उसकी सांवली सी कमसिन दुल्हन सबसे अलग थलग खड़े ताजमहल को देख रहे थे। मैंने करीब जाकर पूछा, आपको ताजमहल कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने क्या पहली दफ़ा देखा? जी हाँ, पहली बार हम तो आते हैं। इससे पहले आपने तस्वीरों में देखा था? तस्वीरों में देखा था इससे पहले। उसकी तस्वीरों के मुकाबले में असल में कैसा लगा? तस्वीरों से इससे कोई टच ही नहीं। ये बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा ताजमहल? अच्छा लगा। फिर आएंगी यहाँ? मेरा ख्याल है इसे बार बार आके देखना चाहिए। बार बार देखने की, कभी चांद की चांदनी में, कभी दिन की रोशनी में। हाँ, ये भी कहते हैं कि ताजमहल के हुस्न का इन्हिसार इस बात पर है कि आपने उसे दिन या रात के किस हिस्से में देखा। मैं जब बोझल कदमों से चलता हुआ वहाँ गया तो तेज़ आंधी गुजर कर कहीं दूर जा चुकी थी। नीलगूं फ़ज़ा में खाक की आमेज़िश ने सारे माहौल को सौला दिया था और ख़ुद ताजमहल रोशनी के रुख गुलाबी और साए के रुख सलेटी सा हो गया था। मैं वापस लौट रहा था। बाहर के बड़े दरवाजे से निकलते हुए हर मुसाफिर की तरह मैंने भी आखिरी बार पलट कर देखा। कहीं इमारतें भी उदास लगा करती हैं, मगर मुझे उस रोज़ वो इमारत उदास लगी, शायद इसलिए कि मैं उस रोज़ वहाँ अपनी तन्हाई के साथ गया था। मैं लपक कर बाहर आ गया और ताजमहल के गुंबद में किसी अकीदतमंद की सदा गूंजती रह गई। Allah